Start Jeshpo. This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangalla Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. An important topic for today and an unfortunate incident which took place in Hyderabad under Golconda police station limits. A young advocate by name Raisa Fatima, a practicing advocate of Nampalli Criminal Courts, aged 41 years, resident of Zubeda Manzil, Adam Colony, Toli Chowki, was brutally murdered reportedly in PS Golconda by her own brother Arif, aged 35, with knife on neck. Body shifted first to Usmania General Hospital. Issue was property dispute. Representation been given to MSJ Criminal Court by advocates, and advocates have been agitating. And the worst part is we came to know that even the case was in the legal fraternity when this incident took place. So that is the reason why we took this topic. ये टॉपिक हमने इसीलिए लिया, मर्डर ऑफ एन एडवोकेट, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी शेयर, शरिया लॉ ऑफ ए वुमन. क्या हमारे समाज में कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन या ईसाई, कोई भी हो, कोई मज़हब, क्या उनको समान हक नहीं मिलता क्या? जब हमारी संविधान जो कहता है, हमारे संविधान ये कहता है कि जो भी ये मुल्क में पैदा हुआ, जो भी ये मुल्क में पैदा हुआ, उसको या वेरी गुड इवनिंग, हक से पैदा होने से हर कोई हक उनको आ जाता है. ऐसे दरमियान, ऐसे सिचुएशन में एक एडवोकेट को केवल एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जान से मार देना, ये कहाँ की इंसाफ है, कहाँ की इंसानियत है? आर वी लिविंग इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी? Brutal murder of a woman in the name of a property dispute. Shameful, that to an advocate, practicing advocate. And I have been told, I have been spoken to by her close friend. She's away from in Karimnagar, because even Shiraz ji, I think they all know her. She was a very good lady fighting for such type of issues. And the case was in the legal circles when this incident took place. What, we could not save them, save such precious lives? Every time after Vaman Rao, we have seen another incident in Jangaon. Advocates are being killed like that. They are court officers. What the hell is happening in our society? How can we lose a court officer just like that? इसीलिए हमने आज ये शरिया लॉ क्या है, क्या वो इंसाफ औरत को नहीं करता क्या, या इस तरह की नाइंसाफ़ी, नाइंसानियत जोड़ने वालों के संग है क्या, इसके ऊपर ही हमारी चर्चा है. और हमारे को आज अतिथि गेस्ट है खलील अहमद साहब, जाने माने वकील भी है. वो काफ़ी कुछ इस मामले में मीडिया में उठा रहे हो. और साथ में शिराज अमीना खान जी, ये भी शी इज़ परस्यूइंग हर लॉ, बट मोर देन दैट शी इज़ अ वेरी गुड एक्टिविस्ट. Whenever I used to call her, she is always there, right from baby Sumeda to every other issue. When even police were not yielding, in the case of, I think you are aware, a TRS leader a body was found in TRS leader's house. When they were not providing the information, she stood there, she fought. In Moinabad's case, yes. And that is the reason why she was not given the ticket also to contest on the party, from her party. And we will be joined by Ashfaq Khan also,
And then we have another advocate, Sony. She's away. She's going to speak to her on the phone. खलील साहब, क्या ये शरीयत लॉ क्या है? क्यों इस तरह के मर्डर्स हो रहे हैं एडवोकेट कोर्ट ऑफिसर्स के? क्या कानून है या नहीं हमारे मुल्क में? हाँ, शिव प्रसाद रेड्डी साहब, यप, शरीयत लॉ जो है, ये शरीयत लॉ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू नहीं हुआ। हाँ, इससे पहले और 3 प्रॉफिट्स हैं जिनको शरिया दिया गया, जिसको लॉ कहते हैं, कोड ऑफ लाइफ। या, तो उसमें मोसेस भी है और ये दूसरे और 2 नबी हैं जिनको रसूल कहते हैं, और लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये शरिया कैसा कॉन्स्टिट्यूट होता, मैं आपको बता दूं कि इसका पिलर्स, पहले प्राइमरी पिलर कुरान है, फिर नंबर 2 हदीस है, नंबर 3 इजमा है, फिर इस्तिदलाल है। इस तरह का डिफरेंट है, 7 टाइप ऑफ पिलर्स को जोड़ने से शरिया बना। या, और ये शरिया जब बना तो दिस लैंड, पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब कॉन्टिनेंट माना जाता है, और ईरान भी। तो यहाँ पर शरिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए महमूद गजनवी जो रेडर था, इन्वेडर, महमूद गजनवी शरिया लॉ को इंट्रोड्यूस करे। और फिर नॉन मुस्लिम, नॉन इस्लामिक कंट्री में औरंगजेब ने शरिया लॉ को टोटली इम्पोज किया तमाम लोगों पे, जिसमें जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम चीज़ों को कवर किया गया। और उस वक्त फतावे आलमगिरी भी बनी, और पूरा जो लीगल सिस्टम था शरिया पे बेस हुआ, मुगल एम्पायर, औरंगजेब। इसके बाद सिपाही इम्यूनिटी हुई 1857 में, जिसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार भी कहते हैं हम। तो उस वक्त डिफीट हुआ और ब्रिटिशर्स ये इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट में मर्ज कर लिए। करने के बाद लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ये लोग मुश्किल महसूस कर रहे थे शरिया लॉ से। तो ये लोग क्या करें कि कोडिफाइड लॉ इंट्रोड्यूस करें और बोले कि क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस जो है इसको अलग कर देंगे, और फिर पर्सनल लॉ के तहत सिविल जो मैटर्स है उसको अलग कर देंगे। और ये पर्सनल लॉ मुसलमानों के लिए मुसलमान मोहम्मदन लॉ कोडिफाइड हुआ, और हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ कोडिफाइड हुआ, और पारसीज के लिए पारसी, और क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियंस। ये पर्सनल लॉस है जो प्योरली पर्सनल लाइफ, जिसको क्या है कि मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, और फिर ये वक्फ बिल्स, यही कवर करता पर्सनल लॉ। और क्रिमिनल लॉ इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन पिनल कोड के तहत वो लोग चलाए। फिर जब फ्री इंडिया हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन को गया और उसको इम्पोज करते वक्त कंट्री में हालात सही नहीं थे, तो उस वक्त सिर्फ जो लॉज थे वो अडॉप्ट कर लिए ब्रिटिश के। और फिर ये पर्सनल लॉ का सिस्टम चलना शुरू हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 44 में कैटेगोरिकली है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है आर्टिकल 44, उसमें कैटेगोरिकली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कांग्रेस रूल था, और ये लोग 370 के बारे में भी वही चले थे, और फिर ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी लंबा चलाते आ रहे हैं। और अब बीजेपी रूल है, बीजेपी का मंजूर जो था इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कही गई। तो अब यहाँ पर जो मर्डर हुआ उसकी हम मजम्मत करते हैं, और ये एडवोकेट्स का मर्डर हो रहा है। इससे पहले नागामणि और उनके हस्बैंड का मर्डर हुआ था। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु डिमांडेड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। और जैसा ही हम करें तो फिर जो तमाम चीज़ें एडवोकेट्स बार एसोसिएशन से भी डिमांड हुआ, और सेंट्रल गवर्नमेंट
पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस कर दी है, ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। अब रही बात क्या है कि क्या इस्लाम में, शरिया में वुमन को राइट है या नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि इस्लाम इज द फर्स्ट रिलीजन who categorically advocated and recognized the rights of women, and the Islam is the first religion who accorded women as inheritance rights. वंडरफुल। ये पहला दुनिया में मजहब है, Yeah. फर्स्ट रिलीजन है Hmm. कि औरत का हिस्सा होता है मरने वाले बाप माँ की जायदाद में, तो वो हिस्से के बारे में भी मेल गेट वन पार्ट एंड हाफ ऑफ द पार्ट फीमेल गेट, ये प्रिंसिपल है। लेकिन हमारे पास जो सिस्टम है, ये यहाँ पे क्या है कि जो इस्लाम आने के बाद नॉन मुस्लिम्स कन्वर्ट हो गए थे और हिंदू सिस्टम में वुमन को शेयर नहीं होता था, इनहेरिटेंस राइट नहीं था। एटी रामाराव आने के बाद में फिर वो इक्वल राइट्स के बारे में हुई बात और इनहेरिटेंस की बात आई और एनेक्टमेंट हुआ। आज भी मैंने कोर्ट में देखा कि हिंदू फीमेल्स को महरूम करने के वास्ते केस बनाने की कोशिश करे, मगर सक्सेड नहीं हुए। आज मैं पर्सनली आई व्यूड एट सीसीसी, तो Okay. बोलना ये है कि हिंदुओं में बाद में इंट्रोड्यूस हुआ कि फीमेल्स आल्सो हैव राइट्स इन द डिसीज्ड फादर और मदर्स प्रॉपर्टी बोल के बाद में हो इनहेरिटेंस राइट्स है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि नॉन मुस्लिम जो थे वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए और साथ में जब कन्वर्ट हुए तो वही ट्रेडिशन लेके कन्वर्ट हुए। तो इनको आदत है, यहाँ पे बोलते हैं तुर्की से आया, मैं अफगानिस्तान से आया, कोई भी नहीं है। ये SC ST जो भी थे, दलित, ये सब और फिर जो भी है वो पूरे के पूरे कन्वर्ट हो गए थे। तो वो कन्वर्ट होते होते क्या करे कि साथ में अपने ट्रेडिशंस को लेके आए और वही ट्रेडिशन है। और ये लोग दे आर नॉट द रियल फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, और ये लोग शरिया फॉलो नहीं करते। और 99% मुस्लिम्स फीमेल राइट्स को खा जाते। बाप मर गया, खत्म हो गया, आपका शादी कर दिए, आपका खर्चा दे दिए, खत्म हो गया, ये जो घर है हमारा है, एक बाग हमारा है, खेत हमारा है, ये चल रहा है। और 70 साल से भी लोग उस पर ऑक्युपाइड है, ब्रदर्स। तो ये एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन बन गया। तो उसी का पार्ट एंड पार्सल था कि ये जो मर्डर हुआ वही मर्डर है कि ये जो लेडी है एडवोकेट, वो जरा इंटेलिजेंट और फिर प्रेशराइज करी थी वो अदर साइड को, ब्रदर्स को, तो इरिटेट होके उसके रिटेलिएशन में मर्डर हो गया। और बिल्कुल हम उसकी कंडेम करना है। एक तो शी इज आवर कोलीग, एंड फिर जो ब्रूटल मर्डर हुआ वो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, तो उसको कंडेम करना है। और साथ में हम अब देर करने का वक्त नहीं है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को कंट्री में इम्पोज कर दिया जाए। तो क्या होता है कि राइट टू इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द राइट है। तो फिर जब राइट टू इक्वालिटी आया तो फीमेल एंड मेल विल बी सक्सीडेड इक्वली, ये होना चाहिए। तो और अगर ऐसा ला भी अगर लाते हैं तो इट इज नॉट द अगेंस्ट शरिया। अब देखिए हम मुसलमानों में क्या है कि हमारे पास जो मुसलमान लीडर्स हैं, वो लीडर्स शरिया हमारी जान से प्यारी बोल देते हैं और लोगों को भटकाते हैं और लोगों को लेके रोडों पे निकल जाते हैं और थ्रेट करते गवर्नमेंट को, और ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन दे आर नॉट द रियल फॉलोअर्स ऑफ द शरिया। फॉर एग्जाम्पल हम हैदराबाद में जो लीडरशिप है उनका कोऑपरेटिव बैंक है, दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक, और इनके मनी लेंडर्स भी हैं। तो ये लोग पूरे इंडल्ज हैं कि जो सूद पे कारोबार करते हैं, इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड अंडर इस्लामिक शरिया, जस्ट लाइक ए फोर्क एंड वाइन प्रोहिबिटेड, लाइक दैट इंटरेस्ट आल्सो प्रोहिबिटेड। मगर ये लोग बराबर इंटरेस्ट ले रहे हैं और कम्युनिटी को इंटरेस्ट देने पे मजबूर कर रहे हैं, और कम्युनिटी में भी जिसके पास मनी है वो लोग लेंडिंग कर रहे हैं और हराम खा रहे हैं। हराम खाने में शर्म नहीं आती, मगर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर लेडी को इक्वल राइट दिए तो फिर वो हराम कैसा होता, वो एक क्वेश्चन है।
तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी एक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन बनाना चाह रही है, ठीक है, नॉट ओनली रिलीजियस बट आल्सो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट, एंड सोशल। तो इकोनॉमिकल में क्या है कि जो इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है वो मुस्लिम के प्रैक्टिस में है, राइट, जिसको नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं और जिसको करना चाहिए उसको नहीं करने दे रहे हैं। राइट, तो मेरा सवाल यही है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाते हैं तो ये पर्सनल लॉ जो है वो रिलेटेड टू एक्सक्लूसिव रिलेटेड टू द राइट, पर्सन्स प्रॉपर्टीज एंड इनहेरिटेंस। राइट, इससे अगर इक्वल राइट्स देते हैं सबको तो इससे किसी का नुकसान नहीं होता और कोई हराम नहीं है, रिलीजियस डिग्री को नहीं तोड़ता। डन। तो फिर हम बात आगे करेंगे, मैं इतना समझा दिया। मैं आता हूँ फिर आपके पास, थोड़ा आपका म्यूट कर लीजिए ताकि मैं शिराज मैडम के पास जा रहा हूँ, और अपने सोनी मैडम भी करीमनगर से जुड़े हुए हैं। शिराज मैडम पहचानते होंगे, एडवोकेट सोनी जी, पर बेचारी वो कहीं दूर गांव में हैं तो उनको मैं लाइन में लिया, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा, शिराज जी बोलिए। मैडम सोनी जी आप भी एक बार हेलो बोलिए। खलील अहमद साहब है, शिराज मैडम है, और अपने अफसफ खान भी। Hello, Shiraz madam. It's Sony here. हेलो, Hello, yes, Shiraz madam, Sony here. या सोनी, हाउ आर यू? Fine, fine, madam. How are you? हेलो, Fine, fine, madam. How are fine. you? या जी ये- शिवा जी। Yeah. बोलिए, आप बात करिए शिराज जी, बाद में सोनी मैडम आपको भी सुनने के बाद उन्होंने भी बात करेंगे। क्या इस तरह मर्डर होते जा रहे हैं? या बोलिए सोनी। सबसे पहले तो मैं अफसोस जाहिर करना चाहूंगी या सबसे पहले तो मैं अफसोस जाहिर करना चाहूंगी कि दिन दहाड़े आज कानून दा एडवोकेट्स के ऊपर इतनी बुरी तरीके से, वाहियत तरीके से जो वारदातें हो रही है, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। नाकाबिले बर्दाश्त है क्योंकि जब जुडिशरी का कत्ल होता है तो इंसाफ की उम्मीद हम किससे लगा सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जब इंसाफ दिलाने वालों को ही किसी किस्म का प्रोटेक्शन नहीं नजर आता है तो ये बहुत ही कंडम करने वाली बात है, जहां पर आज तक हम लोग कंडम ही करते आ रहे हैं। लेकिन बीइंग ए वेरी अग्रेसिव मैनर में मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि आए दिन वुमेन्स की इतनी वारदातें आती है कि जहां कहीं भी यानी कि एक्सप्लॉइटेशन हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या मर्डर्स हो या रेप्स हो, बहुत सारे इश्यूज में वुमेन्स को ब्रूटली मर्डर किया जाता है। नॉट ओनली इन रईसा केस, बीइंग एडवोकेट हम तो एडवोकेट कम्युनिटी कंडम करते ही है, लेकिन जहां पर आप ये बता रहे कि व्हाट इज शरिया एंड हाउ इट इज नॉट यानी कि फुल्ली यानी कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता। अभी मेरे बीजेपी के एडवोकेट खलील साहब है, इनकी बातों से खैर मैं किस हद तक सहमत हूँ, लेकिन बाकी सारी चीजें थी वो असहमति की बात मैं यहाँ पर जताना चाहूंगी क्योंकि आप अपनी राय रखे हैं, लेकिन राय इस तरीके से आप रखे हैं कि जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेचीदा और उलझा हुआ सवाल है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू में उसको आगे बात करूंगी। भाई रही बात रईसा फातिमा के मर्डर की, तो मैं समझती हूँ कि जब कोई भी केस अगर कोर्ट में रन होता है तो समझ लेना ये चाहिए कि बोथ द पार्टीज को कि हमको लॉफुली और लीगली सारी प्रोसीडिंग्स को हमें अपनाना चाहिए, ना कि आउट ऑफ कोर्ट अपनी जातियत के ऊपर उसको लेकर उसकी किसी के दुश्मनी के तहत अपनी ही यहाँ पर ओन सिस्टर्स को इस तरीके से ब्रूटली 4 से 5 लोग मिलकर उसको मार देते महज छोटे से प्रॉपर्टी शेयर के लिए। जबकि वो शेयर अगर ये मुस्लिम कम्युनिटी का हुआ है तो अगर ये शेयर प्योरली आई थिंक सो कि शरी एतबार से सभी को इक्वली मिल सकता था और मिलना भी चाहिए, बिकॉज शरिया सेज एंड इम्प्लीकेट द सेम चीज, द सेम थिंग कि इक्वली द शेयर इज डिवाइडेड व्हेनेवर द पेरेंटल प्रॉपर्टीज है या फादर की हो या मदर की हो, तो उसमें क्या है बच्चों को बराबर का हक दिया जाता है। अगर माँ जिंदा है या बाप जिंदा है, दो में से एक की प्रॉपर्टी है, तो ये मथरू का फैमिली डिस्प्यूट प्रॉपर्टी में आता है जहां पर सबको इक्वली शेयर मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर उस एडवोकेट को मारने का वजूहत क्या थी? जब कोर्ट में जा चुका था, अगर वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल भी करना चाह रहे थे, सर आई एम कमिंग टू द प्रोसीडिंग्स, द प्रोसेस ऑफ द मैटर, मुझे दूसरे बातें नहीं करना है क्योंकि यही चीजें हैं जो
एक क्राइम को जन्म देते हैं। तो Right. कहाँ जहां पर इनकी अंडरस्टैंडिंग खराब हो रही थी या इनकी नीयत खराब थी, कोई किसी का शेयर देना नहीं चाह रहा था, या प्रॉपर्टी में बहन को नहीं दिया जाता है, या बेटी का कोई हक नहीं है, ऐसी ना तो मोहम्मदियन लॉ है, ना इस्लामिक पर्सनल लॉ में बोला जाता है, ना ही हमारे देश का कानून इसको यानी कि डिनाई करता है। तो सवाल ये उठता है कि वो लोग कहाँ पर क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट थी, मर्डर करने की वजूहात क्या थी? वो स्ट्रांगली जा रही थी तो डेफिनेटली वो अपने शेयर की बात कर रही थी, उनका तो शेयर वो छीन नहीं रही थी, है ना सर? करेक्ट है जब बोल- किसी का शेयर के ऊपर कब्जा जमाने की बात होती है, या पोजीशन पे कौन था, कब्जे पे कौन था, ये एक डाइवर्सी थी, अपने माँ के घर आके एक शेल्टर ले रही थी, ये सारी चीजें हैं सर। और मुझे लगता है कि क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में डिले होने की वजह से ये मर्डर को अंजाम देने की नवीयत पेश आई, ये केस कब से चल रहा था, ये सारी चीजों पे हमको पहलुओं पे गौर करने की जरूरत है सर। कि जैसा कि अभी हमने देखा कि जजेस वामन राव उनके मिसेस की बात आती है, और रिसेंटली उसके बाद 15-20 दिन के अंदर एक छोटे से गांव में एक एडवोकेट को खुलेआम मार दिया जाता है कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर। तो ये मर्डर्स हम तो देख रहे हैं कि बाहर तो क्रिमिनल्स कर रहे, लेकिन व्हाट अबाउट द एजुकेटेड कम्युनिटी, व्हाट अबाउट द पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कम्युनिटी वेयर दे आर वेरी मच सिविलाइज्ड, they are fighting for the rights of every citizen, every victim, even the accused also hire the advocates। तो दिक्कत कहाँ पर है सर? क्या ये सिस्टम में है, या सिस्टम से, या पुलिस डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर सवाल उठते हैं कि आजकल मर्डर करना आसान हो गया है और मर्डर्स के ऊपर बेल मिलना भी आसान हो गया है, ये सारी चीजें। तो बहुत गहरी सोच होनी चाहिए सर, बहुत गहरे हमारे इनिशिएटिव्स लेके ऊपर उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। As a pursuing lawyer, या activist since 10 years, fighting for the rights of the women, children, and wherever the injustice होता है, वहां पर मैं ठहर के बात करती हूँ। अब ये मोहम्मदियन लॉ सो एंड सो एरा में आया, उसके बाद ये हुआ, बात ये नहीं है। When India is a secular, democratic, socialist country है, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने फैसला लिया था कि तमाम धर्मों के लोग मौजूद होते हैं, तो हर धर्म के लिए एक कानून यहाँ पर काम नहीं कर सकता है। लिहाजा हर मजहब के पर्सनल कानून होते हैं, कवानीन होते हैं, लॉज होते हैं, उसको यानी कि फ्रेम किया जाए कि अपने अपने सिविल मैटर्स को लेकर, जैसे कि मैरिटल की बात हो रही है, मैरिज को लेकर है, या मेंटेनेंस है, डाइवोर्स है, या एवरी राइट है, या अदर प्रॉपर्टी इश्यूज है, दो सिविल जितने भी राइट्स हम क्लेम कर रहे हैं, दैट शुड बी अंडर पर्सनल लॉज की बात आई है। पर्सनल लॉज की बात इसलिए नहीं आई है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री में इक्वल स्टेटस की बात नहीं। इक्वल स्टेटस हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स इक्वल स्टेटस देने के लिए, लेकिन जहां पर सिविल डिस्प्यूट्स की बात होती है, सिविल राइट्स की बात होती है, तो डेफिनेटली जब एक हमारा कंट्री जब सेकुलर है, तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, तो रिलीजियस पर्सनल लॉज होते हैं। जैसा कि मैंने आपको वार्निंग में भी बोला था कि पहले हिंदुइज्म में या हिंदू रिलीजियन में वुमेन्स को किसी किस्म का इनहेरेंट प्रॉपर्टी में शेयर नहीं दिया गया था। उसके बाद जैसे इस्लाम एडवांस हुआ है, सबको मालूम हुआ है, देयर शुड बी द राइट ऑफ द वुमेन आल्सो टू क्लेम द इनहेरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द एंसेस्टर्स और पेरेंट्स और जो भी है, तो ये चीजें हुई है, तो राइट की तो बात आ चुकी है। अब इक्वल है या नहीं है, इक्वली भी वहां पर डिवाइडेड अनडिवाइडेड शेयर में इसका शेयर होता है। बात ये है सर, जब कोर्ट में अगर मस्जिद मसले है, कोर्ट के अंदर भी हमने 2-4 साल पहले या 5 साल पहले देखा, कोर्ट के अंदर भी मर्डर हुआ है, तो ये मर्डर्स जब हमारे जुडिशरी के अंदर होता है, तो इसके लिए कौन जवाबदेह है सर? अल्टीमेट द सरकार, अल्टीमेट द गवर्नमेंट। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ही आर डूइंग, ये सवाल उठता है। बार बार हम यही कहते हैं सर, माशरे में जब भी, सोसाइटी में जब भी कुछ इश्यूज होते हैं, तो सीधे सीधे सरकार पे ही सवाल होता है, क्योंकि सरकार इज द अल्टीमेट पावर वेयर इट कैन कंट्रोल ऑल द व्हाटएवर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूशन या जुडिशरी, ये सारी चीजें। तो जहां पर लॉज बनते हैं वो तो पार्लियामेंट है, जब बिल्स पास होते हैं तो असेंबली है, रेजोल्यूशंस पास होते हैं तो असेंबली है। अभी प्रोटेक्शन बिल पेंडिंग है, बताया गया है कि वहां पर पार्लियामेंट में पास हुआ है। ये तमाम चीजें हैं। तो भाई यहाँ पर ये कह रहे थे एडवोकेट खलील साहब बीइंग ए बीजेपी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्पोज कर देना चाहिए। भाई साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में इम्पोज नहीं हो सकता। किसी वुमेन के प्रॉपर्टी के राइट को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्पोज हो जाना, ये बिल्कुल गलत बात है और इसको होना भी नहीं चाहिए। Nobody will agree with this, and this is the agenda of BJP in the coming years. I think so.
अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं 2024 में तो डेफिनेटली यहाँ की डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म के फैब्रिक को तहस नहस करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का इनका मंसूबा और मंशा है, जहाँ पर और हजारों करोड़ों लोग तबाह हो जाएंगे। अब हम क्या देख रहे हैं सर, जब से बीजेपी 7.5 साल का रिजीम उनका गुजर रहा है, कहीं पर भी हमने खुशहाली देखी है, कहीं पर भी हमने वेलफेयर की बात की है, कहाँ पर जुडिशरी सिस्टम इनका मजबूत है। आज से 2-3 साल पहले 4 जजेस आके सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक मैसेज देते हैं, मीडिया को एड्रेस होते हैं कि वी हैव बीन के सप्रेस्ड। ये क्या चीज है? यानी कि यूनियन गवर्नमेंट सही नहीं है तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी क्या सही हो सकती है? ये सब का तालमेल है, जहां पर जुडिशरी सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ महज अपनी जाती मफादात के लिए या पुलिस आईपीएस डिपार्टमेंट को एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को अपनी जातियत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आए दिन डेमोक्रेसी का कत्ल होते रहता है। हु इज रेस्पॉन्सिबल, हु इज आंसरेबल फॉर ऑल दोस थिंग्स? ऐसा नहीं है। अरे हमको क्या करना चाहिए? सिस्टम में जब कमियां हैं, खामियां हैं, तो प्रजा को सवाल उठाने के साथ साथ उनको हटाने का या उनको कुर्सी से उतरने का भी मांग कर सकती है। तो ये प्रजा, इट इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इट इज नॉट मनमानी। So I would like to say all these things. अब रही बात शिवा साहब, आपके पास अगर कोई सवाल है तो मुझे बोलिए, क्योंकि जहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरिया लॉ में कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वहां पर औरतों के साथ या बेटियों के साथ या अपनी माओ का जो शेयर नहीं मिलता है, ऐसा सवाल ही नहीं है। जबकि शरिया ये कहती है कि आपको इक्वली शेयर मिलता है। यू शुड नॉट, यू कैन नॉट प्रोसीड इवन though you have the disputes, you please settle the matter among some के आपके कम्युनिटी के बड़े लीडर्स हैं या खानदान के बड़े लीडर्स हैं या आपस में सभी शेयर होल्डर्स मिलके बैठ के बात कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। कोर्ट में जाने की बात ही नहीं है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्ट में जाने की बहुत बड़ा वजह हो सकती है। कोई एडवोकेट थी, एजुकेटेड थी, डाइवर्स थी, वो अपने राइट के लिए यकीनन लड़ रही थी, उसको उसका राइट मिलना चाहिए था। अब ये जो 4 से 5 कल्प्रिट है, ये लोग क्या करेंगे सर? कितने साल की सजा ये लोगों को मिलेगी कानून से? बेल पे तो ये आ जाएंगे और एंजॉय करेंगे उस प्रॉपर्टी को, लेकिन सजा कैसे मिलेगी? क्या हमारा सिस्टम इतना सख्त है? क्या इनको 10 से 20 साल की सजा एक ब्रूटल मर्डर के लिए दे सकती है? क्योंकि हमारे कानून में इतने झोल है कि वहां से भी अक्यूज हो या कल्प्रिट हो या मुजरिम हो, बचने की पूरी कोशिश करते। डेफिनेटली आप जो बातें उठाई हैं, मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इवन अपने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट रमना जी ये भी बोले कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आप ट्राई करिए ताकि कोर्ट्स के ऊपर बर्डन ना हो। एक अच्छी ये दिए थे, लेकिन इस तरह मर्डर करने का इवन मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत में भी नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को सख्त से सख्त अगर सज़ा नहीं दिया जाए, बाहर आके ये लोग फिर यही प्रॉपर्टी को एंजॉय करे एक अनफॉर्चुनेट लेडी की डेथ के बाद में, तो ये हमारे समाज के ऊपर एक हंसी मजाक है। मैं आऊँगा खलील साहब, आपके पास आऊँगा, आप लिख के रखिए, क्योंकि मैं सोनी मैडम से बात करवा के खान साहब से 2 मिनट में बात करते नहीं एक सेकंड सोनी, एक सेकंड खलील साहब एक सेकंड साहब, सोनी मैडम जो है, एक सुनिए खलील साहब, शी इज़ ऑन द लाइन फ्रॉम करीमनगर, उनका लाइन थोड़ा खत्म हो जा रहा। सोनी मैडम से बात कराता हूँ मैं, फिर आ रहा हूँ आपके पास, आप लिख के रखिए। आई एम कमिंग, डिबेट इज़ नॉट एंडिंग, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। या सोनी मैडम, आपके अच्छे मित्र रह चुके हैं और इस तरह उनको ये हमारे समाज से हटाया जाता है, ये क्या हंसी मज रईसा के मामले में, रईसा को मैं पर्सनली जानती हूँ, या एक रईसा का एक इंडिविजुअल मर्डर नहीं है, वो विडो है। राइट, वो उसके दोनों बच्चे उनके, उन लोगों का भी जो है ना, एक तो फॉर्डर की है और अभी जो है ना माँ के साथ ये हादसा हुआ है। वो इंडिविजुअली बीइंग अ लेडी स्ट्रगल कर रही थी वो अपने प्रोफेशन में अपने बच्चों को पालने के लिए, करने के लिए। शरीयत ये लीगली प्रोसीडिंग, मैं सिराज मैडम की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि एरिया के तहत आइसोलेटेड डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन के तहत तामीर में मेडसन के वालिद साहब जब डिसाइड कर रहे थे कि 400 स्क्वायर यार्ड का लैंड दे देते बोल के बच्चियों को, जब उनके फादर को जो है ना 5 लड़कियां और 5 लड़के हैं, राइट, लड़कियों को देने का जब उनके फादर डिसाइड कर चुके थे, तो उनके चाचा उन लोगों को, उनके खानदान के बड़े लोगों को रख के एग्जैक्ट टाइम उन्होंने वसीयत भी लिख दिए, हिब्बा भी कर देते या रजिस्टर भी कर देते बच्चों को, तो आज ये लड़ने की नौबत रह रही थी। मच रिसेंटली उनके फादर
Right. बैंक की तरफ से। Right. तो आपको जाने तो आया उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी सर, वो तो उन्होंने ही हैज एन कंप्लीट राइट, वो लोग जिनको चाहे उनको दे सकते थे। Right. उसके बाद अगर हम लोग जाके अगर कोर्ट से भी रजिस्टर करते या रजिस्टर ऑफिस में भी रजिस्टर कर देते उन लोग, या अपना हिब्बा भी रजिस्टर कर देते, वसीयत भी, तो शरीयत के हिसाब से तो इस्लामिक मोहम्मद अल्लाह में किसी तरह की कामियां नहीं है, उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीयत क्या बता रहा है कि लड़की औरत को मर्द को 2 हिस्से और औरत को 1 हिस्सा है। इन दिस पर्टिकुलर केस ऐसा होगा कि 5 बेटों के 10 हिस्से हो गए, 5 बेटियों के 5 हिस्से हो गए, 15 हिस्से होना चाहिए पूरे प्रॉपर्टी के, अब एंटायर प्रॉपर्टीज के, अगर शरीयत के हिसाब से देखा जाए तो। उसके अलावा भी विडोज को तरका के नाम पे एक रूम अलॉट किया जाता है माँ बाप के पेरेंट्स के पास, ताकि वो लोग वहाँ पे घर में रह के करके वो लोग अपना निजी जरूरतें पूरा कर सके। तो शरीयत गिवन ऑल द राइट्स टू द वुमेन। हेलो, सुन रहे हैं, बोलिए सोनी जी। शुक्रिया सर। Yeah. Yeah. तो शरीयत यहाँ पे पूरी तरह शरीयत की तो ला अपना जो है किसी भी औरत के लिए, किसी भी मजलूम के लिए या विडो के लिए अपना अपना एक प्रोविजन कर रखा है मोहम्मद अल्लाह के तहत। अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टी भी है, बच्चे नहीं है तो 1/4 शेयर आएगा, अगर बच्चे हैं तो 1/8 शेयर, तो वैसा है ही है वो, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे क्या था, एरिया के तहत अगर फैमिली मेंबर्स एल्डर पर्सन के पास जब भी सब्री कर देते रहते उन्होंने लास्ट टाइम में, तो आज ये नौबत ही नहीं रहती थी, उनको इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं रहती थी, ना कोर्ट को कट्टे पाने की जरूरत रहती थी करना। अभी इनके पूरे ये प्लान मॉडल अकेले हैं या इनके साथ बाकी लोग हैं, जैसे बताया जा रहा 5 एक्यूजर है फैमिली मेंबर्स में, बट उन लोग एक ही नहीं ना, उनके बच्चे भी तो सफर जाएंगे ना। हाँ, प्रोविजन सर, अब ये मैरिज के लिए हुआ तो उसका तो किसी भी तरह ये जो है जायदाद के मसलों में से मर्डर करना या कौन से भी मसले में दूसरे एक का जान लेने का इख्तियार वो किसी भी शरीयत या कौन सा भी कानून किसी भी मजहब के तहत नहीं दिया गया है किसी की भी जान लेने की इजाजत। वो चाहे वजह और कुछ भी हो, प्रॉपर्टी वजह आपसी रंजिशें हो या और कुछ भी हो, सिबलिंग्स के बीच में रही बात, आपसी मनमुटाव तो हर घर में चलता है, बट जिस तरीके से अंजाम लेना मीन्स वो थोड़ा बहुत दर्दनाक वाकया ही है। बट उसके हालात हम लोगों को उससे वो जो है ना, हम उस वक्त क्या चल रहा था, क्या है किसके दिमाग में, उसके बारे में हम लोगों को उतना मालूम नहीं। रही बात कानूनी बात पे, तो कानून कोर्ट में सिविल मैटर्स चला बहुत लंबे अरसे तक जाता था, ये तो सभी लोग जानते। कोर्ट एक ही ये फाइनल स्टेप होना चाहिए, कोर्ट का स्टेप कभी भी होने दो, जब हमारे को शरीयत के हिसाब से कानून ला है अपना, तो बड़े लोगों में बिठाना या बड़े लोगों के बीच में लेके जाना और आपसी मदद से ही इसको मसले को हल करना, ये बहुत बेटर सोल्यूशन रहेगा कभी भी। इवन अंबानी फैमिली भी कोर्ट को गया था सर, मगर उसके बाद कोकिला बहन ने खुद सेटल किया था दोनों भाइयों का हिस्सा। वेरी वेल ऑल knows about that issue. Yeah. Being a mother, कोकिला बहन ने खुद सेटल किया था अनिल अंबानी का और मुकेश अंबानी का इशू, जबकि कोर्ट को गए थे मगर कोर्ट ने फैसला नहीं किया था उनके। ठीक है, बट लेकिन इस तरह अगर इस तरह लोग अगर इस तरह नाइंसाफ़ी और नाइंसानियत के लोग के बीच में कोई इस तरह बुरी तरह से उनको कत्ल किया जाए, ये कैसे देखना चाहिए? अब कहाँ की इंसाफ? अब बोले जैसा शरीयत के साथ शरारत हो रही है, अगर उनके पिताजी मरने के पहले सही लिखते तो ये इतनी नौबत। या मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी कि शरीयत के साथ किसी तरह का चर्चा नहीं हुआ सर, ये एक मजहब का है, मत कीजिए इसको, एक मजहब का नहीं है, क्योंकि रईसा फातिमा शी इज अ मुस्लिम, इसमें शरीयत का या कानून का नहीं है, कानून अपना प्रोविजन अपने आप हर लड़की के लिए हर औरत के लिए दे चुका है। ओके, यहाँ पे क्या है मालूम है, एक उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका नहीं है उनके फैमिली मेंबर्स में, और उनके फैमिली के बड़े लोग उसको सुलझा नहीं पाए। दैट्स द मेन रीजन। राइट, दैट्स द पॉइंट, दैट इज ए फंडामेंटल पॉइंट। बड़े लोग उनके कुटुंब फैमिली में नहीं सोनी जी आई एम वेरी क्लियर विद दिस शो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन व्हेन इट कम्स टू इनह्यूमैनिटी, नो क्वेश्चन ऑफ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, जो भी रिलीजन में या
No. रईसा मैडम वो भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे उन लोगों का प्रोविजन है कि उन लोग अपना एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन को आगे लेके जा सकते हैं, तो नो इश्यू विद दैट ऑल दिस थिंग्स। राइट। उसके लिए कोई एक इंडिविजुअल वुमेन का क्या है यहाँ पे करियर में आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, तो एक तो उनको कंपटीशन एक है और बच्चों की जिम्मेदारी ज्यादा है ना सर उनको। हाँ, दैट्स ट्रू। बच्चे कहाँ जाएंगे? पेरेंट में स्ट्रगल करते में बच्चों की जिम्मेदारी है, अब उनके फादर नहीं है, मदर का मर्डर हो गया, तो वो बच्चों का स्टेटस क्या है एट प्रेजेंट? राइट, वेरी वेल सेड। प्रॉपर्टी तो आया गया ठीक है, बट बच्चों को तो माँ तो चली गई ना, बच्चों के ना पिता ना माता। चलेगा ना, वालिद तो चलेगा, माँ का भी चलेगा ना। वही गलत हो रहा है, वही गलत। और जो मार चुके हैं उनकी फैमिलीज की भी हालत देखो। हक देना है, तो हक देना है इनका ही है, जो लोगों ने मर्डर किया है, जिनके वजह से बच्चे यतीम हुए हैं, Right. उनके उसमें भी पेनल्टी क्लॉज के तहत उनको बच्चों को उनके पास से भी हिस्सा लेके देना जरूरी है सर, मेरे हिसाब से तो। बस ये है कि अच्छी बात कही है, जो पेनाल्टी के तौर पर जो भी इस तरह की गुस्ताखी करेगा, कत्ल करेगा, कानून अपने हाथ में लेगा, उनका हिस्सा भी। एक टाइप की लॉस हो गई है सर। Yeah. एक क्या है, हर चीज का एक लिमिट रहता है सर, बट लाइफ इंश्योरेंस एक का लिमिट नहीं रहता सर। डेफिनेटली अच्छी बात कही है आप। किसी ने नहीं बना है, लाइफ इंश्योरेंस का लिमिट नहीं रहता, तो पेनल्टी कंपलसरी है, लोग से हजारों में लाखों में नहीं सर, उनका पूरा शेयर उनके बच्चों को आना चाहिए। वंडरफुली सेड, क्योंकि तभी डर रहेगा। आपने किया है, उनका भी शेयर उनके बच्चों को, रईसा के बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि Very- they have lost all the parents, both the parents। वेरी वेल सेड सोनी जी, हैट्स ऑफ टू यू। जो भी कत्ल किया है, क्योंकि ये बच्चे यतीम हो गए, ना माता ना पिता, तो इनका शेयर जो भी ब्रदर जो भी मर्डर किए, वो फैमिली का पूरा हिस्सा ये बच्चों को आना चाहिए, ताकि ऐसे पेनाल्टी रहने जरूर आना चाहिए। ऐसा पेनाल्टी रहने पर कोई और फ्यूचर में कोई इस तरह की गुस्ताखी नहीं करेगा। आप बने रहिए मैडम। सोशल बाइकआउट करें और सोशल प्रेशराइज करें और बच्चों का हिस्से के लिए क्या करें कि फिल्म स्टार लड़का है, सुशांत सिंह राजपूत, तो उसके पीछे सब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सब लोग ये करते हैं, क्या वो बच्चों के लिए ध्यान में लेके अगर करेंगे, वो बच्चों को सोशल बाइकआउट करेंगे, उनके फैमिली को और प्रेशराइज करेंगे, तो क्यों नहीं देंगे सर वो लोग? पक्का। कोर्ट का फैसला तो होने के लिए होगा, यह कोर्ट का प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर है सर, सिविल प्रोसीजर नहीं है। राइट, वेरी वेल सेड। क्योंकि अगर जो गुस्ताखी किए हैं उनके ब्रदर, अगर ब्रदर के बच्चे उनके शामिल है तो उनको भी सज़ा मिलेगी, और साथ में अगर ना शामिल भी है, उनके पिताजी जो काम किए उनके ऊपर वो सदमा पहुंचेगी और उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे पिता माता लोगों को बच्चों के तरफ से सपोर्ट मिलना ही नहीं चाहिए। आप बने रहिए मैडम। एक बार मैं एमएन खान साहब कांग्रेस के हैं, हमारे अजीज़ों में से है, बाद में आप बने रहिए, बाद में मैं खलील साहब के पास भी जा रहा हूँ, थोड़े एक 5-10 मिनट के लिए बने रहिए सोनी मैडम। या खान साहब बोलिए। जी सर। Good evening, डॉक्टर साहब। वेरी गुड इवनिंग। Is my voice is clear? वेरी क्लियर। Good evening to all. हमारे शिराज मैडम, खलील साहब, how are you? और सोनी मैडम भी करीमनगर से पाबिचारी। As usual, डॉक्टर साहब, आपका जो टॉपिक है, दो बड़ाई जो सो वो है, एक तो सेंट्रल इशू के ऊपर है, एक दूसरा जो सो स्टेट इशू के ऊपर है, क्योंकि शरीयत और ये जो अभी जो मर्डर्स वगैरह जो हो रहे हैं उसके ऊपर बड़ा अच्छा जो सो इंटरेस्टिंग जो सो वो रहा। तो अब मैं सबसे पहले तो देखिए, अगर स्टेट का जो मसला है वो स्टेट फेलियर है। वो गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर पिछले 1 साल में अगर हैदराबाद का ही अगर रिकॉर्ड लिया जाए तो 20 से ज्यादा मर्डर हो गए, और वहां पर आज जो मोहतरमा जो एडवोकेट थे उनका मर्डर हुआ, और उनके भाई ने उनका जब कत्ल करने का इरादा करा तो ये सोच के करा कि तेलंगाना का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना वीक है कि वो बाहर निकल जाएंगे। 1-2 महीने के नीचे एक लड़के दो जो सो कुछ नशे के हालत में दो नौजवान, 2 ग्रुप्स के बीच में चंचलगुड़े में ही एक जो सो झगड़ा हुआ, जिसमें अनवांटेडली एक लड़के ने दूसरे लड़के को मारा और ऑन द स्पॉट वो लड़का डेथ हो गया। 20-22 साल का लड़का था वो, और उसको मिल गई बेल जो सो 22 दिन के अंदर बेल हो गई हो। कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर जी डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये है कि राउडी शीटर्स रहने दीजिए या जो भी अफेंडर्स हैं, चाहे वो पुराने अफेंडर्स हो या नए अफेंडर्स हो, तो इनको यहाँ का जो तेलंगाना का जो कानून है वो यानी कि कानून व्यवस्था कोई स्पेशली, मैं अपने ओल्ड सिटी पुराने शहर की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो मतलब कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मर्डर हो जाते हैं या कोई जो सो नागहानी वाकया पेश आ जाता है तो यहाँ पर कोई जो तो उसको सीरियस लेता ही नहीं, बस होते चलता है, क्योंकि यहाँ के जो
लीडरशिप है, वो लीडरशिप भी यहाँ के ये जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज है उसके ऊपर सीरियस नहीं है। वो एक वजह है जिसकी वजह से आज एक यानी कि एक एजुकेटेड फैमिली में भी एक मर्डर हो जाता है, भाई मार देता, तो उसको पता है कि मैं कोर्ट को जाऊंगा तो 15 से 20 दिन में मेरी भी बेल हो जाएगी, बाहर आएंगे फिर देख लेंगे। तो यहाँ पर कानून का भी कहीं ना कहीं जैसा बहुत बड़ा वो है, गवर्नमेंट फेलियर है। होम मिनिस्टर जो है वो बातें बहुत करते हैं बाहर, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा फेलियर है। और दूसरा, जब मैं अभी डिस्कशन देख रहा था, शिराज मैडम जैसा कि सोनी मैडम ने बहुत अच्छी बात की, खलील साहब की बात शायद हो चुकी थी, मैं ज्वाइन किया तक शरीयत का, अगर जहाँ तक शरीयत का मामला है तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बेहतरीन, अगर किसी के औरत के इंसानी हकूक के ऊपर अगर कहीं पर कोई बहुत बेहतरीन जैसा मामला है तो वो जो इस्लामिक शरीयत का है। कहीं पर भी इस्लाम के अंदर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करने का कहीं पर भी नहीं। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलिए आप उसको, या इस्लामिक शरीयत बोलिए। देखिए आप, अभी मैं बीच में सुन भी रहा था हमारे खलील साहब के कुछ जो तजावीज थे कि कॉमन सिविल कोड, यहाँ पर हमारे मुल्क में कॉमन लैंग्वेज नहीं है। अगर आप केरला चले जाएं तो वहाँ अलग लैंग्वेज है, तेलंगाना में रहेंगे तो अलग लैंग्वेज है, अगर कोई दूसरे स्टेट में चले जाएंगे तो अलग लैंग्वेज है। यहाँ पर हम ऑलरेडी लैंग्वेजेस के नाम पर जो डिवाइड है। और कॉमन सिविल कोड अगर आप किस तरह से करेंगे, कॉमन सिविल कोड को पहले समझा भी दीजिए कि व्हाट इज कॉमन सिविल कोड, कैसा हो जाएगा। विभिन्न तरह के लोग, विभिन्न जातियों से आने वाले, विभिन्न मजहबात से बिलोंग करने वाले सरदार जी हैं हमारे भाई, आप उनको कैसा जो सो वो करेंगे, कॉमन सिविल कोड कैसा जो सो आप लागू करेंगे। और उसके अलावा भी यहाँ पर 7 साल में चाहे तेलंगाना में हो या फिर जो हमारे जो बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसे इश्यूज हैं। अभी खलील साहब यहाँ पर बैठ के बात करें, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर्स आकर गए हैं, यहाँ पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जायदादें वक्फ बोर्ड की जो तो लूट ली गई हैं। उसके ऊपर जो तो कोई मतलब बीजेपी गवर्नमेंट अगर सीरियस, अगर कॉमन सिविल कोड मुसलमानों की अगर जो तो बात करें कि कुछ उनके लिए अच्छा होगा, उनके बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर तो लाखों करोड़ों रुपए की लूट मचाने के बाद जो वहाँ पर जो बेसिक मुद्दे हैं, अगर बेसिक मुद्दों को जो अगर सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद में जो क्रिटिकल मुद्दे हैं यहाँ पर होता है, जैसे कि आर्टिकल 370 हो या CAA NRC हो या फिर जो तो अभी जो लेटेस्ट मुद्दा उठाया जा रहा है कॉमन सिविल कोड का, तो ये मुद्दे क्या हैं, वो तो देश को कहीं ना कहीं बांटने के मुद्दे हैं। और कोई दो कम्युनिटी के बीच में जो सो रिफ्ट पैदा करने के जो सो इश्यूज हैं। पहले जो कॉमन इशू यहाँ के आज कोविड के सेकेंड वेव के बाद जो हालात मुल्क भर में हैं, उन हालात पे कैसे जो सो हम काबू पाएं। आज अभी मैं न्यूज वगैरह में देख रहा था कि एक स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल चलाने वाले स्कूल बंद करके अपना छोटा सा शॉप डाल के चला रहे हैं, तो उनकी जिंदगी आगे कैसा बढ़े। उसके बाद बहुत सारा वक्त है, फिर उसके ऊपर कॉमन सिविल के ऊपर बात कर सकते हैं बेशक। ठीक है, मैं फिर आता हूँ आपके पास। खलील साहब। हाँ डॉक्टर साहब, मैं सुन रहा था, बोलिए। मैडम खान को और फिर हमारे अशफाक भाई को भी कांग्रेस के, और UCC के बारे में ये लोग आप ऑब्जेक्शन रेस करिए और फिर एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड करने की बात करते हैं। तो मैं अभी ये नहीं समझ पाया क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को बिलीव तो करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये बोलिए आप। मैं अशरफ खान साहब फिर आऊँगा आपके पास। नहीं खान साहब एक बात कर रहे जब हम, खान साहब एक सेकंड, खलील साहब एक बात कर रहे जब एक खान साहब एक सेकंड, खलील साहब, खान साहब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 क्या, खलील साहब मैं एक बात, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 44 क्या बोलती है, वो एक मर्तबा आप घर जाके फिर एक मर्तबा गौर से पढ़ लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो थे कमेटी और अंबेडकर की भी व्यू यही थी कि देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म सिविल कोड, बल्कि आर्टिकल 44 में लिख दिया। तो उसको इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम है। 70 साल टोटल कांग्रेस रूल रहा और जहाँ की वही बात रही, नहरों से लेके नहीं एक सेकंड, खान साहब आपको टाइम देंगे। खान साहब नहीं खान साहब सोनी मैडम नहीं खान साहब आप सुनिए, ये क्रॉस टॉक। खान साहब आपका टाइम आया जब आप बात करिए। खान साहब लेट अस नॉट इंटरफियर इन ईच अवर। या सोनी मैडम आपके पास आता हूँ मैं, एक बने रहिए, या खलील साहब।
नहीं, नहीं। 65 साल तो रूल करें और कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है उसको नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए और दूसरी बात, मैं शरिया पे आ रहा हूँ। या शरिया पे बोलिए। अगर बात करो बोले तो करूंगा, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, शरिया पे बोलिए खालिल साहब। तो हाँ, मैडम बोल रहे थे कि शरिया में मेल एंड फीमेल गेट इक्वल राइट्स, नहीं, तो ऐसा नहीं है। इनहेरिटेंस में मेल गेट वन पार्ट एंड हाफ ऑफ द मेल पार्ट फीमेल गेट। अगर 50 NP का वो वारिस बनती है तो वन सेकंड, मैडम आपके पास आ रहा हूँ। सोनी मैडम ठहरिए, सुनिए आप। तो या एक बात हो गई। Right. और दूसरी बात क्या है कि फादर मदर पहले लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी को करना था विल। तो मैडम अभी लॉ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है, उनको नहीं मालूम कि शरिया में विल इज नॉट मेंटेनेबल। अगर आप मुसलमान हैं और विल लिखते हैं तो वो मेंटेनेबल नहीं है। वेट, सोनी मैडम, नो क्रॉस टॉक। सोनी मैडम, मैं आपके पास आता हूँ। सोनी मैडम प्लीज, मैं आपके पास आता हूँ। बात करने दीजिए, बात सुनिए। आप लिख लीजिए, आप बात करिए फिर बाद में। या बोलिए खालिल साहब। मुस्लिम कैन नॉट एग्जीक्यूट विल राइट इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन। ये शरिया का रूल है कि विल नहीं लिख सकते। अगर प्रॉपर्टी मैडम प्लीज तो बोलिए। इक्वल शेयर में करना पड़ेगा, और कोई भी उस वक्त इक्वल शेयर के लिए राजी नहीं था, क्योंकि मरने के बाद में देने के वास्ते बाप भी तैयार रहता, माँ भी तैयार रहती, और बेटे भी यही चाहते कि इक्वल शेयर नहीं जाना। प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है शरिया। और जब मर जाते हैं तो असल रूल क्या है कि डेथ बॉडी के सामने पूरा स्टेटमेंट होना, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का, एसेट्स का पूरा बैलेंस शीट होने के बाद में, जब भी डिवाइड होने के बाद में लास्ट रिचुअल्स करने की बात है शरिया में। ऐसा नहीं कि पूरा रख दिए, छुपा लिए और ले जाके फेंक दे रहे हैं, आने के बाद में बहनों को बोल रहे हैं तुम कौन है, तुम्हारी शादी कर दिए थे। ये तो कॉमन प्रैक्टिस है। तो ऐसा नहीं है, शरिया को टोटली फॉलो नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी की मेजॉरिटी इंटरेस्ट बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो हराम है, प्रोहिबिटेड, जस्ट लाइक ईटिंग ए पोर्क and having a sex with mother, and even Muslim leaders also encouraging and they are involved in the interest practice। ये हराम काम को कबूल करने के लिए शौक से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे यूसीसी के बारे में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आप अगर यूसीसी को इनकार कर रहे हैं तो यू आर डिनाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं है, हम बोलते हैं। अगर आपको बिलीव है तो आर्टिकल 44 भी इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको अपहोल्ड करना पड़ता। तो आप पार्टली कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है बोल रहे हैं और 44 को छोड़ देंगे बोल रहे हैं, तो बात नहीं चलती, ठीक है। और रही बात फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, तो सब्जेक्ट है, उसमें कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इतना नहीं दे दिया गया इंडिया में कि मैं जो चाहे मनमानी कर दूं, वो नहीं है वो बात। वो जाके फिर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोल के आर्टिकल 25 फिर एक मरतबा पढ़ना पड़ेगा। तो अब रही बात क्या है कि यहाँ पे एक और सजेशन आया कि जो अगर भाइयों को मार देता है भाई या कोई, तो उसका प्रॉपर्टी फॉरफिट करके उसके किन्स को देने की। तो ऐसा प्रोविजन इंडिया के रूल लॉ में नहीं है अभी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यूसीसी को इनेक्ट करना पड़ेगा। इनेक्ट करके उसमें प्रोसीजर लिखना पड़ेगा कि कोई मर जाता है तो उसकी संतान को कैसा उसकी आस्ती को बांटना है, और कोई ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट करने का प्रोविजन रखना पड़ेगा। ये सब करने के लिए एनेक्टमेंट होना जरूरी है, और यूसीसी के बगैर काम चलने वाला नहीं है। और आज जजेस भी शरिया लॉ पे क्वालिफाइड नहीं है, वो लोग बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि मैं आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, हैविंग 28 इयर्स स्टैंडिंग एक्सपीरियंस, एंड आई कैन से आई एम एक्सपर्ट इन शरिया लॉ, और मैं आई हैव रिटन ए शरिया बुक। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जजेस भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं उसके प्रोविजन से, और लूप होल्स है, हिबा कागज बना देता, बिल बना देता, कुछ ना कुछ कर देता, कर दे के एक लिटिगेशन करता। तो कोई भी विलफुली देना नहीं चाहते सिस्टर्स को। ये एजुकेटेड फैमिली में और वाइट कलर्स में ये प्रैक्टिस है कि एनी हो सिस्टर्स को डिसओन करना, ये है। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
इसमें बोलता है कि राइट टू इक्वालिटी का प्रोविजन है ना, मान देना। तो राइट टू इक्वालिटी में मरने के बाद भी वुमेन को राइट टू इक्वालिटी अगर दे देते हैं तो इक्वल शेयर्स डिवाइड होते हैं। इससे गलती क्या है? इससे खान साहब बताइए कि क्या गलत होता अगर इक्वल शेयर देते हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि हराम हो जाता तो नहीं है वो। नहीं, डेफिनेटली। इसीलिए मैं एक बार सोनी मैडम, सिविल कोर्ट की राइट, एक बार सोनी मैडम अब आप बात करिए। आप थोड़ा म्यूट करिए, खलील साहब बात करिए। एक हिस्सा मेल को, उसमें आधा हिस्सा, हर किसी को वसीयत बनाओ नहीं बोल रही सर। बोलिए, वो बात करिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं हर किसी को वसीयत बनाओ नहीं बोल रही हूँ। Being a parent, we very well know about the psychology of our kids actually. राइट, Okay? राइट, हम लोग एक माँ बाप होने के नाते अपने औलाद को हम जानते हैं। जब वो उनका बच्चा निकला, जब पौधा देना चाह रहे बोले तब ऑपोजिशन आगे आ गए। ही ना उसके मेरे जीते की अपोज कर रहे मेरे औलाद को, मेरे मरने के बाद तो ठीक है नहीं बोलते तो उनको तो समझ में आ गया ना जब तो। ठीक है। तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस, अब मैं ये नहीं बोल रही कि क्या हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर क्रिश्चियन क्या कोर्ट से जाके अपना जायदाद को बंटवारा करवा? नहीं ना सर। राइट, कानून में भी तो हो रहा है ना। हर कोई कोर्ट से मैरिज नहीं कर रहे, हर कोई कोर्ट से बंटवारा नहीं कर रहे ना सर। Yeah. Politicians को। Right. तो जब फौरन पता था कि उनके राइट में ऑब्जेक्शन थे इसके ऊपर, तो उनके जाने के बाद कैसा भी और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये being a psychologist, क्या टेलिंग यू सर। या बोलिए। एक चीज क्या है कि ये क्राइम होने से पहले ही उसका अंदाजा फोरकास्ट देते आया था, बट उस चीजों को जो है ना इग्नोर कर दिया गया। रईसा ने लाइट ले लिया उसको। उसने सोचा कि हाँ ये जो है ना कोर्ट के थ्रू सुलझा जाएगा बोल के, उसको पहले से पता था उनके फैमिली मेंबर्स के बीच में ना इत्तेफाकी है और कहीं ना तो उसको थ्रेटनिंग कॉल्स कर रहे थे। या वो उसको लाइट लेने का नतीजा था ये। उसने समझा बस खाली थ्रेटनिंग है, वार्निंग है, बस वहीं तक बोलते समझी। उसको वो पहले से जो है ना ये क्राइम होने से पहले कब से कि उसका बुनियाद चल रहा था। फादर ने बस इग्नोर किया, वो ऑपोजिशन आ रहा था। फादर अगर उनके जीते जी में अगर कर देते, प्रॉपर्टी रजिस्टर कर देते तो चलो भी हिब्बा इज देयर सर। हिब्बा वही वसीयत लिखने का है। बट पार्टीशन जब भी बिल आएगा, वसीयत आएगा तो वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेस्टिनी होगा ना सर। बिफोर दिस तो नहीं होगा सर। और जिस तरीके से खलील साहब बता रहे थे कि डेड बॉडी को रख के जो है ना पूरी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स लेना है सर। डेड बॉडी को रख के कौन से भी रिलीजन में प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट नहीं चलता है सर। ओके, रिलीजन में इंसानियत में ही नहीं चलता सर कि डेड बॉडी को रख के आप चलो प्रॉपर्टी बनवाना होगा तो डेड बॉडी उठाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। नहीं, वो मतलब से नहीं बोले, वो बोल दे रहे कि जब नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। घर में पेरेंट्स के सामने ही अगर मुद्दा आ रहा है कि लड़की के मामलों में, औरतों के मामलों में पेरेंट्स के जीते जी जहाँ पे ऑब्जेक्शन आ रहे, तो भाई कोर्ट हो, भाई रजिस्ट्रेशन हो या किसी भी तरीके से उनके जीते जी ही दे दिए, राइट। तो बाद में चल के आगे चल के डिस्प्यूट्स नहीं मिलेंगे। इतना नौबत नहीं आता था अगर रईसा के फादर से मालूम था कि उनकी जीते जी प्रॉब्लम आ रहा, तभी क्लियर कर देते, राइट। रजिस्टर कर देते। तो ही हैज एटलीस्ट 1/4 शेयर तो रजिस्टर कर ही सकते थे, उनका प्रॉपर्टी का उनका शेयर तो रजिस्टर कर सकते थे। दैट इज प्रॉपरली टेकन। यस, अगर सही तरीके से उनके पिताजी पहले ही रईसा के नाम पे कर देते तो। और ये थ्रेटनिंग कॉल्स को और ये वार्निंग्स को अगर ये हाँ मेरे भाई है बोल के इग्नोर नहीं कर रही थी रईसा, तो आज वो रईसा के बच्चों को माँ का साया होता। I'm least bothered about the property sir, I'm least bothered about any other person, I'm only concerned with Raisa. No, you are a good friend of her. No, even I am feeling bad. We came to know how strong a personality Raisa was. And Pabichari, she did not anticipate that her own brother will kill her. ये कौन सोचता मैडम? ये कोई सिनेमैटिक लड़ाई झगड़ा होगा, वहाँ तक ही चलती हो, मगर ये नौबत आएगा इस तरह धीरे सोचेगा वो। जैसे कानून का खान साहब भी बोल रहे थे, यहाँ का कानून जो चंचलगुड़ा की भी बात कर रहे थे इसके पहले खलील साहब भी, हम ऐसे कोई थोड़े मुद्दे भी उठा चुके हैं। जब देशद्रोही, देश विरोधी करते हैं फिर वो लोग भी बेल पे आ जाते हैं उसको कानून के ऊपर। सर ओसीबी का मामला भी कैसा है सर, अभी जिस तरीके से बोल रहे हैं कानून तो हर जगह पे है। कानून किसी को भी जो है ना सजा नहीं देते हैं, छोड़ता बोलते से नहीं है। इसमें क्या है सर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर प्रॉपर्ली चार्जशीट फाइल करते तो किसी की हिम्मत नहीं होती सर छुपने करने की। मगर यहाँ पे कानून का तो इन्वेस्टिगेशन के लिए सपोर्ट नहीं होता, एक तो प्रॉपरली
बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पॉइंट के ऊपर से ले लेके लोग Right. जो है ना थोड़े लोगों जो कानून के हैं वो लोगों की वजह से बाहर लाता कौन सा एडवोकेट ही ना सर। हाँ वो तो है, आप ही लोग हैं आप ही लोग हैं उनकी खिदमत भी आप ही करते हैं। इसका भी जो मर्डर हुआ सर बीच रोड पे ब्रूटली या आई नो वी फील सॉरी, क्योंकि मैं ऐसा है, देखो आज आप अपने चीफ जस्टिस साहब भी, रमना साहब भी यही बता रहे कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करिए। इसका मतलब यह है कि पीसफुल रेजोल्यूशन हक के तौर पर हो, आपके यहाँ या बैठ के हो, समाज में बैठ के करिए, ताकि आप कोर्ट ना आए, ताकि आपको इस तरह की ये एक अच्छी थी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात। लेकिन ऐसे अगर ये खतरनाक माइंडसेट है जो कि ये मेरा हक है, मैं नहीं देना चाहता हूँ उनको, मैं इनको मार के ही लूँगा, अब ऐसे लोगों से आप बोले जैसा एक कानून इनैक्टमेंट होना ही चाहिए। अगर आप इस तरह गुस्ताखी करेंगे, किसी से ज़बरदस्ती छीनेंगे, किसी की जान लेंगे, एक कानून इनैक्टमेंट बनना ही चाहिए। ओनली तब ये लोगों को डर रहता, और आप बोले जैसा कोई लीगल कानून ऑफिसर भी उनको सपोर्ट करता। जब कोर्ट जाता, कोर्ट नहीं मानता, क्योंकि ऑलरेडी इनैक्टमेंट रहेगा। तू ये काम करके आया, तेरे को किसी हाल नहीं मिलेगा, तेरे और तेरे बच्चों की भी अननेसेसरली, आज उसके भाई के बच्चे भी आज रोड पे आ गए ना, उनका फैमिली भी रोड पे आ गया आज। फिर मैं आता हूँ आपके पास, एक बार मैं शिराज के पास जाके आता हूँ आपके पास। आपको नजर में लेके आना चाह रही यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ में आग करने का प्रोविजन है वालिद साहब को और वालिदा को। मदर एंड पेरेंट को जो फादर को जो है ना राइट है कि किसी भी बच्चा जो उनके कहने के विरुद्ध जा रहा हो या उनके अगेंस्ट में जा रहा है, उसको प्रॉपर्टी से बेदखल करने का, आग करने का प्रोविजन है। बहुत वंडरफुल। फिर ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा मैडम? इतने हादसे क्यों हो रहे? क्योंकि या बोलिए बोलिए मैं क्या बोलना चाह रही थी, बोलिए। अगर इस मामले में या ऐसे कोई कानूनी मैटर्स जहाँ पे प्रोविजंस में जो है ना औलाद दूसरे औलाद को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वालिद साहब बोल सकते हैं कि जो मैं दे रहा हूँ वो उठा के चलते रहो, वरना तो उसमें भी हाथ पकड़े हुए क्या अगर वो करे तो क्या नहीं सेटल होता दूसरा मैटर? ये वंडरफुल, प्रोविजन ही नहीं है। मुस्लिम पर्सनल आग करने का हक है माँ बाप को, हक है। अगर उनके अगेंस्ट में औलाद जा रहे तो। राइट, वेरी गुड। क्योंकि मैं, आप बने रहिए, शिराज मैडम के पास भी ऐसे केसेस मुद्दे हैं, तो मैं उनसे भी राय लेना चाहता हूँ। मैडम, शिराज मैडम थोड़ा अनम्यूट करके बात करिए। मेरे ख्याल से आपके पास भी काफ़ी केसेस है अब इस तरह के। सोनी मैडम ने बहुत क्लियरली बता चुके हैं कि अगर औलाद इस तरह गुस्ताखी करे तो पिताजी का हक है कि मैं किसी को नहीं दूंगा, चलो बेदखल करने का भी हक है। तो इस तरह की इंसिडेंट्स हम ना देखना पड़ते। शिराज मैडम, आप अनम्यूट करके बात करिए। या अनम्यूट करके बात करिए, वो हरा होना चाहिए। हाँ, बात करिए। जी या आपके पास भी कई केसेस है इस तरह के। या जी जी मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगी राइसा के केस में। राइसा का जो केस है सर, कितने साल से चल रहा था, उसका हिस्ट्री क्या था, उसके सारे यानी कि नवैयत क्या थी, या हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम है। जस्ट हम एक जनरल व्यू रख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब कोई भी केस अगर कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में होता है तो शायद उसकी जो ट्रायल की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है। अगर हम राइसा के मुद्दे को लेकर अगर हम फोकस करेंगे कि ये ब्रूटली मर्डर करने की वजूहात क्या है, फिर वहीं पर सवाल आके रखता है, क्या बाप मरने से पहले उनको उनका शेयर दे देना था, या माँ उनको कुछ लिख के देना था अगर माँ की प्रॉपर्टी थी? ये भाई इतना एतराज क्यों कर रहा था? भाई क्यों अपनी बहन की प्रॉपर्टी का हक नहीं देना चाह रहा था? ये सारी चीजें हम खाली वर्बली कर रहे हैं। बात ये नहीं है, अगर आप उनसे बात करें तो आपको पता लगा होगा कि एग्जैक्टली इसका रीजन या कॉज ऑफ द मर्डर क्या है। तो मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बात यहाँ पर रखना चाहूंगी, जबकि अक्सर हम ये बोल रहे हैं कि वालिदैन पेरेंट्स अपनी जिंदगी में बच्चों को शेयर यानी कि डिवाइड कर देना चाहिए था। व्हाटएवर द प्रोसीजर अप्लाइज हियर, चाहे वो विल के थ्रू हो, चाहे वो डिवाइडेड शेयर के थ्रू हो, या लीगली हो, जिस किसी भी अंदाज में हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड, शरिया लॉ ये बता रहा है कि आपको वहां पर हक़ाइक़ के हक दे देने की बात हो रही है। तो यहाँ पर झगड़ा, फसाद या क्राइम या ऑफेंस होने की कहां पर सूरत हाल पैदा होती है? एक सेकंड, आप बात करिए। आप बात करने के बाद ही आप इत्मीनान से बात करिए शिराज मैडम। आप बात करने के बाद ही दूसरों को चांस बोलिए। तो आज जो माशरे में इतना
क्राइम रेट जब बढ़ रहा है, इवन तो छोटी चीजों पे भी, जैसा कि अभी हमारे अशरफ साहब बताए हैं कि 2 बच्चों में लड़ाई हो जाती है, वो जल्दी बेल से आ जाता है। तो क्राइम, जैसा कि आप ये बता रहे, सोनी ये बता रहे कि कोई नया लॉ या रूल एनैक्ट होना है, तब जाके शायद डर लगता है। सर मैं नहीं समझती, सॉरी टू से, मैं नहीं समझती कि कोई दूसरे लॉज को एनैक्ट करना है। मौजूदा लॉज के ऊपर ही अगर हम पूरी तरीके से सिस्टम को मजबूत करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी ए ग्रेट ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, रुक सकता है क्राइम। ऐसा नहीं, जब हम कानून बनाते हैं तो क्राइम को रोकने से, पनपने देने से ही सारा माहौल बनाया जाता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में, ये बात होती है। अब रही बात के बच्चों की प्रॉपर्टी भी वो खातिनों को नहीं देनी चाहिए, बच्चों को आनी चाहिए, ये बातें हैं सर, ये इसमें कोई रियलिस्टिक बात नहीं हो सकती है। प्लीज सॉरी टू से ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि मौजूदा जो हमारे कानून है, जो लॉस है, हम उसको ही पूरी तरीके से कानून या कोर्ट के अंदर पेश करके डिफेंड नहीं कर सक रहे हैं, तो हम ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं? अभी मैं देख रही थी कि भाई डॉटर का क्या शेयर होना चाहिए एज पर इस्लामिक शरीयत लॉ। वो अनमैरिड होती है तो उसका शेयर क्या होना चाहिए, अगर वो मैरिड होती है हस्बैंड से क्या होना चाहिए या अपने पेरेंट्स से क्या होना चाहिए, सारी चीजें अलग है। 1/8 थे, 1/4 थे, ये सारे शेयर्स है। लेकिन सवाल ये नहीं यहाँ पर कि भाई शरीयत लॉ कभी किसी लॉ राइट को क्या डिनाई करता है। शरीयत लॉ ना तो बच्चों के राइट को डिनाई कर सकता है, ना ही लड़कियों के राइट को डिनाई कर सकता है, ना ही माँ के हक को डिनाई कर सकता है। जहाँ पर इक्वली जब शेयर दे देने की बात हो गई तो हमारे माशरे में कोर्ट कचहरी जाने की सूरत हाल क्यों पैदा हो रही? पैदा इसलिए हो रही है कि क्राइम उसके दिमाग में पनपता है कि उसका हक खा जाने का या हक उसका दबोचने का या उसका प्रॉपर्टी के शेयर पे काबिज होने का या कब्जा करने का या नहीं देने का जब सवाल आता है सर, नीयत जब खराब होती है तो वहीं पर क्राइम पनपता है। तो हम ये कह रहे हैं कि 4 लोगों में बैठकर, बड़े लोगों में बैठकर इसको हल किया जाए तो डेफिनेटली शरिया लॉ इज टोटली एक लीगल लॉ है, ये कानून है। हम उसको हल्के में लेकर हम कोर्ट कचहरी जाते हैं। वाई कोर्ट कचहरी में जाने से हमको क्या होता है? और एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है सर कि रईसा का केस कितने सालों से कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में ये डिले क्यों हुआ था, जबकि शरिया लॉ के तहत बेटियों को कितना हक देना है क्लियरली मेंशन है, उसी के तहत कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो ये कितना अरसा हुआ था। कोर्ट हैज टू गेट सच केसेस इनटू फास्ट ट्रैक। अगर ये मर्डर्स को रोकना है तो इमीडिएटली कोई ऐसा ऑर्डर और जजमेंट पास करना पड़ता है कि बेस्ड अपॉन द इस्लामिक पर्सनल लॉ व्हाट एग्जैक्टली एक डॉटर को शेयर होना चाहिए, ये चीजें हैं। तो हम तो चाहते नहीं कि हमारे मसाइल कोर्ट कचहरी में जाए, क्योंकि मैं 10 साल से आउट ऑफ कोर्ट केसेस सेटल करती हूँ, चाहे वो किसी भी एतबार का मामला क्यों नहीं होता, इवन एनी काइंड ऑफ द डिस्प्यूट हम आउट ऑफ कोर्ट रिजॉल्व करते हैं। Even after becoming a lawyer also, I prefer maximum cases to be settled out of the court, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी में जाने के बाद अदावत, दुश्मनी, नफरत, ये सारी चीजें पैदा होती है, सारे हालात खराब हो जाते हैं, अक्सर देखा ये गया है। लेकिन आपसी रंजिशों में ये हादसे होते हैं जो कि हम रईसा के केस में देख रहे हैं। अगर आपको कोर्ट कचहरी में जाना ही है तो मतरूका या फैमिली डिस्प्यूट मैटर में क्यों जाते, जहां पर बड़े बड़े जमींदारों की प्रॉपर्टी हड़पी जाती है या कोई लैंड ग्रैबर कब्जे पे कर लेता है। अगर वैसे मसाइल में बड़े बड़े अगर क्रॉस ऑफ प्रॉपर्टी के मसले हैं, शायद अगर हम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ले तो शायद मैं समझती हूँ कि वो बेहतर है। लेकिन फैमिली मैटर डिस्प्यूट्स और द प्रॉपर्टी राइट्स में हमको कोर्ट कचहरी जाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो उसको काउंसलिंग सेशंस में जानी चाहिए, जैसे कि रिजोल्यूशन ऑफ एक्ट है यहाँ पर, या रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटलमेंट, जैसे कि जज रमना जी ने बताया है। क्या हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जाने से पहले उसको क्या हम लोग बैठ के सुलझा सकते हैं, जैसे कि आज फैमिली डिस्प्यूट्स में हो रहा है कि पहले 45 डेज काउंसलिंग की जाए, उसके बाद केस को रजिस्टर किया जाए। शायद अगर इसमें भी ऐसा हुआ, अगर ये प्रोसेस अडॉप्ट किया गया तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे प्रॉपर्टी केसेस को हम हल कर सकते हैं, क्योंकि इंसान की सोच, उसके क्रिमिनल थिंकिंग, थॉट्स को लेकर ही ये सारी चीजें पनप रही है। सर अच्छा और बुरा ये 2 ही चीज है जहां पर हम लड़ते हैं हमारे राइट्स के लिए या हमारे जितने भी हुकूक के लिए हम अगर बात कर रहे हैं, या राइट नाउ हम शेयर की बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, तो ये चीजें हैं। तो जो हो सकता है अगर हम उसी पे अगर बात करें, उसी पे डिबेट करें, इसी को मजबूत करने की अगर हम बात करें तो शायद मैं समझती हूँ कि क्राइम रेट रुक सकता है।
रही बात सजा देने की, सर हमारे कानून के प्रावधान में बहुत सारे झोल है, बहुत सारे झोल है। कोई एक आम इंसान भी अगर उसको मालूम होगा गया कि भाई 30 दिन में 40 दिन में तुम्हारी बेल होती है, फलाने के जात का मर्डर करके आके पुलिस स्टेशन में कबूल कर लो, कोर्ट में कबूल मत करो, तो डेफिनेटली वो वही काम करेगा। आज बेरोजगारी का आलम इतना है सर कि बच्चा क्राइम कर रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कौन से सिस्टम की जिम्मेदारी है? मुझे ये बताइए। हम और आप बोलने से नहीं होता। The persons, the government who is running, the people, those are running the government, those people are जिम्मेदार and responsible for all those things. Right. ये सारे circumstances, सारे हालात हमारी गवर्नमेंट मजबूत नहीं रहने से, या हमारा लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट या हमारी जुडिशरी में इतना तवील लंबा डिले होने से भी लोगों में वो पेशेंस, वो सब्र, वो इंतजार खत्म हो जाता है। हाथ कुछ नहीं लगता, चप्पल घस जाते हैं। तो ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक में अगर हम धरते हैं या वहां पर 6 महीने साल के अंदर अगर हम कुछ नताइज लाते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स के जरिए, ऑलरेडी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या इस्लामिक पर्सनल शरीयत लॉ में प्रॉपर्टी के ऑलरेडी रेडीमेड कानून है, वो कानून पे ही जजमेंट करा सकता है। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? वेयर इज अनदर प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड हियर? देयर इज नो प्रोसेस और प्रोसीजर। राइट, क्योंकि शरिया कानून को मानने वाले अगर कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट भी शरिया कानून से ही जजमेंट या ऑर्डर्स पास करता है। राइट। So I think the main reason is that delay also might be, मुझे केस की हिस्ट्री तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ। हमारे अपोजिशन वकील्स में क्या करते हैं, बजाय हमारा जो काउंटर पार्ट होता है, जो अदर एडवोकेट्स अपोजिशन में जो लीड करते हैं केस को, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैक्सिमम सिविल मैटर्स को करीब में बिठाकर सेटल किया जाए। वो लोग भी प्रोलॉन्ग करते हैं, डेट पे डेट, तो ये दोनों की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत सारे थोड़े मोरल वैल्यूज भी है, थोड़े इंसानी हुकूक भी है, जहां पर उसके बाद हमारे प्रॉपर्टी राइट्स है। तो ये तमाम चीजों का तालमेल अगर होता है तो शायद इंसाफ या हक मिलने में जुडिशरी से भी हमें दिक्कतें नहीं पेश आती। राइट। ये और मैं मशहूर कहावत और क्या और सुने और हैं? एक बात Justice denied. राइट, डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड। मैं और एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हम हैसो कानून को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए उसके ऊपर एक हमारी थी, और एक अमेंडमेंट जो है ये कानून को इम्प्लीमेंट करते हुए इस तरह के अगर वायलेंट इंसिडेंट्स हुए, ये वायलेंट इंसिडेंट्स ना हो उसके लिए एक अमेंडमेंट लाना चाहिए। इसका मतलब यही था कि ये एग्जिस्टिंग कानून पहले सही तरह से लागू हो, बाद में साथ में अगर इस तरह के वायलेंट इंसिडेंट्स किसी को जान लेने की नौबत ना आए, अगर लेना कभी सोचता है उसके क्राइम चिंता अगर दिमाग में आए तो ये कानून अमेंडमेंट भी उसके जहर में, उसके माइंड में जाना, वो इस तरह की सोच थी। बस यही थी यार, कानून बिना कानून है सो कानून लागू बिना हम क्या कर सकते हैं? कितने भी अमेंडमेंट्स आए वो खाली या एक मिनट, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट बिल तो है ना सर, Yeah. सामने है ना सर, वो ये अभी एडवोकेट्स पे कत्ल हो रहा है, हाँ? जो Yes. किसी के राइट्स के लिए कानूनी एतबार से लड़ते हैं, तो उनके लिए जो बिल प्रोड्यूस किया गया, अभी मेरे भाई साहब बता रहे, Yeah. तो व्हाई इट इज नॉट यूनिक के पास्ट। यस, वो वामन राव साहब का भी केस अभी तक कुछ नहीं हुआ, हाई कोर्ट ने इट इज सीज्ड विद हाई कोर्ट। अब इस तरह की अगर जल्दी आप जिस तरह बोले, जो भी इस तरह की कत्ल या करता है और वो भी कोर्ट ऑफिसर्स के ऊपर इस तरह की नौबत आती है, पहले सख्त सज़ा, और भी एज़ पर रूल ऑफ लॉ, एज़ पर रूल ऑफ लॉ कानूनी के दौर पर अगर आप सही डिसीशंस अगर कोर्ट्स लेते तो समाज में इस तरह की सोच ना आती। ये भी दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी वेल टेकन। लेकिन सोनी जी जो बताए रईसा मैडम की, उनकी हालत विडोवर थी, 2 बच्चे थे, शी वॉज फाइटिंग एंड बीइंग ए कोर्ट ऑफिसर शी ऑलवेज बिलीव्ड इन लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बिकॉज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेजेस में, क्योंकि हमारे उसमें भी है प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे नाम पे है, बिना ना मैं साइन किए ना माई फादर साइन किए, दूसरों के नाम पर हो गई, और हमारे रिलेशंस उसके साथ में है। ये काफ़ी चीज़ है मैडम, इसीलिए हमको कोर्ट जाना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि वी कैन इवन एक्सपोज द ऑफिसर्स हु हैव डन दिस इलीगल थिंग्स। हो रही है ना सर, ना, आपके मसले में धोखाधड़ी हो रही है, धोखाधड़ी है, ये धोखाधड़ी है, ये धोखाधड़ी को यहाँ चीटिंग। मगर रईसा के साथ वो नहीं हुआ है, मदर रई के साथ, रईसा के साथ भी यही हुआ है। बारे में बात करूँ, सोनी मैडम जो बता रहे हैं, मैं सर, उनसे बात स्पेसिफिकली मैं बात करके मैं आता हूँ। खान साहब डॉक्टर साहब, या बोलिए, सोनी मैडम बोलिए। डॉक्टर साहब, कि आप अपने तेलंगाना को लेके अगर बोल रहे हैं कि एडवोकेट सोमन राव साहब का हो या रहीसा मैडम का मर्डर हो,
और वो तो झारखंड का बात कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत हुआ, वो बहुत गलत हुआ, वो एक ट्रक से मार दिया गया ना एक या बोलिए। यहाँ पे क्या है, एडवोकेट है या प्रोफेशन वर्डर तो नहीं है सर, इतनी घृणा और इतनी ये जो है पहले से जो है ना डिविएशन, पहले क्या था, यूनाइटेड रखने की कोशिश करते थे सर पेरेंट्स वगैरह भी सभी बच्चों को, राइट फिर जो है ना प्रायोरिटीज, पहले प्रायोरिटीज क्या थे कि घर, फैमिली मेंबर, पेरेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी में थे, Right. इनकम्स, अर्निंग और प्रॉपर्टी सेकंड प्रायोरिटी में थे सर। Right. आज सेकंड प्रायोरिटी का ओनली इस तरीके से हो गया, रिलेटिव्स में भी जो है Right. उसको सलाम कर दिया, और जो नहीं है, जो गरीब है, उसको देखते ही नहीं है। राइट तो ये सोशल स्टेटस, ये पूरा जो है ना दिखावे की दुनिया हो गई सर। ये फेस के ऊपर एक नया मास्क चढ़ा हुआ है सर। Right. कोरोना का मास्क नहीं है, बट ये जो है शो ऑफ का मास्क चढ़ा हुआ है सर, Right. लोगों के बीच में। तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ बनावटी मुखौटा पैदा हो गया सर लाइफ पैटर्न में। Yeah. और जो सिबलिंग्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स पहले से मेंटेनेबल पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, Yeah. इंडिविजुअल फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज में जो कल्चर था वो अभी इंडिविजुअल फैमिलीज में नहीं है सर एकदम। राइट और क्या है, बच्चा एक्सीडेंट करके आया, इतना रफ एंड इतना रश है सर हैदराबाद के ओल्ड सिटी के बच्चे। अगर कुछ भी हो जाता तो पेरेंट्स हाँ चला तो क्या हुआ, बड़े ऐसा उसके सपोर्ट के लिए छोटी छोटी गलती को अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते रहेंगे तो कल बड़ा गलती कर बैठेगा। वेरी वेल सेड, वेरी वेल। तो बच्चों के उससे कानून नहीं निकल रहे सर, कानून का डर है तो जिस तरीके से है सर, जिसको पनिशमेंट मिला उसको पनिशमेंट मिला, जिसको पनिशमेंट नहीं मिला उसको कानून से छूटता बोलने तो कुछ नहीं है सर उसमें। राइट क्योंकि देख के जब ट्रायल में आएगा, जब ये होगा तो सभी लोग तो ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि उसने गुस्से में किया या किसान ने भी किया, बड़ी बात है मर्डर। मर्डर इज अ मर्डर, बस मर्डर इज अ मर्डर। That's it. गुस्से में करा या कैसा करा, क्या है, इसके बाद फिर है। राइट। कानून तोड़ते हो तो कानून तोड़ना ही है, अगर कानून के तौर पर आपको शिक्षा बरकरार पड़ने पड़े, बस ये समझाना चाहिए हर पेरेंट्स को। आप बने रहिए मैडम। खलील साहब। राइट हाँ डॉक्टर साहब, या मैं फिर आता हूँ सोनी मैडम। राइट Right. राइट Yes, ma'am. दैट इज व्हाट शिराज मैडम भी वही तो बता रहे थे। अगर माइंड में इस तरह की चिंता हो, हाँ डॉक्टर साहब, या आ रहा हूँ खलील साहब, या मैं सोनी मैडम एक बार खलील साहब के भी सुनी। खलील साहब बोलिए, मैडम भी अच्छे थोड़े बोलिए। देखिए, यहाँ पे सोनी मैडम शायद बोले हैं और ये शिराज मैडम भी बोले हैं कि फादर लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी सेटल करना। Right. तो एक बात पहले याद रख लीजिए कि शरिया लॉ में देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ओके जैसा हिंदू लॉ में है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अलग है, ताता मुताता का जो है वो अलग है और फादर का अलग है, वैसा कोई कांसेप्ट नहीं है। राइट और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर और मदर, चिल्ड्रन ऑफ द Muslim parents cannot claim for any partition or cannot claim for any share in the property. ये रूल है शरिया का। अब बाप नहीं करता क्योंकि उसको एक सेकंड सोनी मैडम एक सेकंड बने रहिए, आप बात करें। उसकी प्रॉपर्टी एक सेकंड मैडम, सोनी मैडम आप बात करेंगे बाद में, बोलिए खलील साहब। मरने के बाद में ले लो बोलता है वो, जिंदगी में नहीं देता। और बिल सोनी मैडम एक सेकंड सोनी मैडम क्रॉस टॉक क्या होता, कंफ्यूज हो जाती है। पहले खलील साहब बात करने के बाद आप बात करिए। खलील साहब बात करने के बाद आप बात करिए मैडम, प्लीज अब बोलिए खलील साहब। मैं आप सोनी मैडम नहीं आप बनी रही। सोनी मैडम आप खलील साहब बात करने के बाद आप जरूर बात करिए, बोलिए खलील साहब। ये मुस्लिम कैनॉट एग्जीक्यूट विल इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन। अल्लाह है शरिया लॉ, तो विल में नहीं लिख सकते, विल इज नॉट मेंटेनेबल। तो मरने के बाद में जो भी लेना है ले लेना है। अगर जिंदगी में बांटता है खुशी से तो इक्वल देता है। मरने के बाद में लेडी 50% और जेंट 100%, 1:2 का चलता।
और अब रही बात कि प्रॉपर्टी में चिल्ड्रन कोई राइट नहीं रखते ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पेरेंट्स, नो राइट ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पेरेंट्स। मगर हिंदू लॉ में क्या है कि इवन अनबॉर्न चाइल्ड कैन फाइल पार्टीशन सूट अगेंस्ट हिज ग्रैंडफादर ओके फॉर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। बच्चा नहीं भी पैदा हुआ है, पेट में है, चाइल्ड इन द वomb कैन आल्सो फाइल पार्टीशन सूट और कैन डिमांड हिज और हर शेयर। ये है हिंदू लॉ में। तो इसीलिए क्या है कि जो जुडिशरी है और जजेस है, उनको बहुत डिफिकल्टी है कि ये शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करने और पर्सनल लॉज को इम्प्लीमेंट करने। और कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगरिकली स्टेट करा है आर्टिकल 44 में कि देयर शुड बी वन कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड होना बोल के। तो एक तरफ तो ये मान रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, वैसे साहब भी बोलते हैं, ये शिराज मैडम भी बोलते हैं और सोनी मैडम भी बोलते हैं, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को हम नहीं मानते, बोले ऐसी बात है इनडायरेक्टली। तो ये बात चलने वाली नहीं है। और ये 60 इयर्स या 65 इयर्स कांग्रेस रूल था। नहीं वो छोड़िए, पार्टीज की छोड़िए, आप बोलिए, पॉइंट बोलिए। नहीं हुए और खान साहब एक कमेंट करके चले गए यहाँ पे कि नहीं उनका कनेक्ट नहीं हो रहा साहब। मलकपेट में, हैदराबाद मलकपेट से इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा, यही प्रॉब्लम है। या बोलिए। मैं भी मलकपेट में हूँ, खान साहब का नेबर हूँ मैं। नहीं एक्चुअली बाहर है, उन्होंने बाहर जाके इज ट्राइंग टू कनेक्ट, तब से कोशिश कर रहे बेचारे। तो क्या है कि उन्होंने कह दिया कि तेलंगाना में 1 लाख करोड़ की जायदाद वक्त की चले गई। तो हम पूछना ये जा रहे हैं आपसे, आपके तवज्जुह से, कि गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस के रूल में नहीं गई ये वक्त प्रॉपर्टी? नहीं आएंगे वक्त पर, क्योंकि सिराज मैडम हम सवेरे भी डिस्कस कर रही है, वक्त प्रॉपर्टीज की भी बहुत बड़ी हालत है। अगर ये सब सही आते तो मुसलमान को ये गरीबी से दूर जा रहे थे ये लोग। या नहीं लानपो हिल्स जो है लगटा पार्टी कांग्रेस का नहीं था। और ऐसे कांग्रेस वाले कितने स्कैम्स करे, टोटली भी अकाउंटेड है। नहीं बात क्या है कि रिफॉर्म्स की, या रिफॉर्म्स राइट, बोलिए। जुडिशियल रिफॉर्म्स ऐसा होना चाहिए कि चाहे वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कोई भी मरता है तो उसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं फ्रीडम के लिए। कि मरने के बाद में क्या है कि डेथ बॉडी की प्रेजेंस में प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का स्टेटमेंट बना के जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर्स होना कि स्पॉट पार्टीशन कर दे के हैंडेड ओवर कर देना, ये प्रोविजन होना उसमें। और अगर लायबिलिटीज है तो उनके हीड्स से बर्डन डाल देना कि ये लायबिलिटीज है, लोन्स है, ये आप लोग देना। तो ये जुडिशियल रिफॉर्म अगर आता है तो लेंथी वो नहीं होता, और फिर उसी वक्त डेथ सर्टिफिकेट भी इशू करने का प्रोविजन लाना, इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। राइट। एक हम आपको ये भी बताना चाह रहे थे कि सिराज मैडम या सोनी मैडम, हम पहले से ये वक्त प्रॉपर्टीज अगर सही तरीके से गरीब मुसलमान को अगर जाता तो इस तरह की नौबत नहीं आती। हम ये पहले से हम डिबेट कर रहे थे, इसके भी डिबेट लेंगे हम। वी विल स्पीक। और एक बात हम जरा बोल के बात खत्म कर देते हैं, और हमको भी जाना है कि वक्त इज द एब्सोल्यूट डिपार्टमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो वक्त में क्या है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। जैसा अकाल तख्त है, अकाल तख्त में क्या होता है, कमेटी 6 डायरेक्ट वो सेलेक्ट कर लेते। तो मुस्लिम वक्त की प्रॉपर्टी के लिए कमेटी टू बी इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, Muslim professionals, Muslim graduates, just like MLC, electoral college must be formed, and electoral college should be elect the committee without the interference of the governments. अब पूरे आप 7 असेंबली सीट, हैदराबाद में 7 असेंबली सीट आपके ही है, GHMC में मैक्सिमम वार्ड्स आपके ही है, MP साहब आपके ही है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा साहब? ये फिर आएंगे इसके ऊपर भी हम, सिराज मैडम और सोनी मैडम, हम वी वर डिस्कसिंग इट एक्चुअली। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, रिलीजियस स्कॉलर्स, ग्रेजुएट्स। नहीं साहब, अगर ये स्कॉलर्स ये सब भी अगर बात नहीं करते, नहीं उठाते जबान, अब क्या हालत है आज देख रहे हैं हैदराबाद में किस तरह लूटा जा रहा है। अगर यही सही प्रॉपर्टीज गरीब मुसलमानों को अगर मिल सकते तो ये नौबत नहीं आती ना साहब, ये मर्डर्स की सब नौबत ही नहीं आती। सुनिए उतना अच्छा है तो ये मर्डर भी नहीं होता था, और ये कोर्ट्स की जरूरत ही नहीं है, और एडवोकेट की भी जरूरत नहीं है, चले आते। तो ये जो है ना, ये वक्फ कमेटी जो फॉर्म हो रही, गवर्नमेंट किसी को इलिटरेट को लाके बिठा दे रही, और लैंड ग्रैब। दैट इज अ डिफरेंट इशू, विल कम बैक टू दैट लेटर। खलील साहब एक बार
Yeah, we'll come back to that. That is a good subject. I am going to involve you. I have already sent this invitation to some good leaders. I am waiting for their reply. Even if they don't reply, same हम जैसे लोग डिबेट करेंगे. सोनी मैडम, आप खत्म करिए, बाद में मैं शिराज मैडम से आई विल एंड द शो. या जी डॉक्टर सर। बोलिए. सर, मैंने पूछा, कलील साहब से पूछा कि हिब्बा क्या है, और हिब्बा के तहत वालिद साहब रिपेयर कोई भी हो लो लाइफ टाइम में, एंड सरकार क्या है पुजीकर में। सुनिए खलील साहब, बोलिए. नहीं, मेरे को क्लैरिटी नहीं है मैडम का साउंड जरा आप मेरे को explain आप कर बोलिए, आप बोलिए, और एक बार पूछिए मैडम. हिब्बा का मतलब क्या होता है और सरकार का मतलब क्या होता है सर? आप शरीयत पे इतने मुश्किल के नाते हैं, कलील साहब, I'm not hearing you properly. हिब्बा क्या होता है और सरकार क्या होता है? हिजबा का मतलब क्या है और क्या पूछे मैडम, सोनी मैडम? तरका। तरका. जी। समझ गए ना खलील साहब? क्या नहीं समझ, बोलिए, आप बोलिए. हिजबा का, Explain me. हिजबा का, हिब्बा है, कल भी है हिब्बा का क्या ताल्लुक है, और साथ में और कौन सी बात पूछिए आप? जी पूछिए सर, हिब्बा का मतलब क्या होता है? हिब्बा के तहत वन पर प्रॉपर्टी दे सकते हैं, और सरकार विडोवर्स की बात कर रही हूँ सर, मैं यहाँ पे विडो की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रईसा फातिमा के मर्डर के उससे, तो आई एम स्पीकिंग अबाउट विडो राइट्स। विडो राइट्स पूछ रहे और हिब्बा की राइट्स पूछ रहे खलील साहब. हाँ, हिबा just like a gift. We can say in common law gift. मुस्लिम लॉ में हिबा ओरली कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द डोनर. उससे बढ़ के नहीं कर सकता. और हिबा करने के वास्ते रिक्विजिट्स हैं कि जो हिबा कर रहा है वो डिक्लेरेशन देना, साथ में प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन देना, और फिर उसके लिंक डॉक्यूमेंट देना, और हिबा जिसको दिए हैं डोनी एक्सेप्ट करना, ये रूल है. तो अब यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास है कि हिबा नहीं हो रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, मरने के बाद में हमारे अब्बा दिए थे, हमारे चचा दिए थे, हमको हिबा दिए थे ओरली, और हम पोजीशन में है, ये पोजीशन में नहीं है, ये बातें हो रही हैं. तो हिबा के लिए लेकुना है, और कई सुप्रीम कोर्ट में लैंडमार्क जजमेंट्स हुए, अशफाक अली का हुआ और ये हफीजा बीबी का हुआ, एक इवन एक थर्ड पार्टी टेनेंट क्लेम करे था हिबा का. तो हिबा में क्या है कि मुस्लिम कैन एग्जीक्यूट, रिसेंट जजमेंट है लैंडमार्क, हफीजा बीबी में, मुस्लिम कैन एग्जीक्यूट ए मेमोरेंडम ऑफ हिबा एंड रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. इससे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 129 में ये था कि अबव द 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. तो अब क्या व्हाइट पेपर पे लिख लेंगे हिबा इज वैलिड बोल के, सेवरल केसेस इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट्स, समझे ना? Right. तो ये हुआ. और विडो के राइट्स, यस, विडो आल्सो हैव हर ओन राइट्स इन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी. हस्बैंड प्रॉपर्टी 1/8 पार्ट, 1/8वां हिस्सा बीवी को मिलेगा शौहर की जायदाद से. अगर 4 बीवियां हैं तो 1/8 1/8 डिवाइडेड बाई 4. राइट. समझ में आ गई ना बात? और बच्चे, अगर बच्चे हैं तो ये बच्चे हैं, बच्चे नहीं है नहीं, फर्स्ट उसका डूवर दे देते हैं, उसके बाद में वाइफ का जो शेयर है, allocation of the wife share 1/8 Right. if she is alone. If there is 4 wives, have to divide 1/8 into 4 parts. राइट. ये है widow rights. बच्चों का बच्चों का 2/3, वो जो भी बचता है रिमेनिंग पार्ट 1/8 जाने के बाद वो बच्चों का है. 1:2 बच्चों का. अगर बच्चियां हैं, टोटली फीमेल्स है, मेल नहीं है, तो 2/3 डॉटर्स को जाता, 1/3 उसके अंकल को जाता है, या उसके हाउस भाई सो एवर, उसके कोई भी जो भी बड़े लोग हैं वो लोग ले लेते हैं. अगर 2 बच्चियां हैं, एक बच्ची है तो 50% बच्ची को देते हैं, बकिया 50% नियरेस्ट हाई सो एवर किन्स ऑफ द डिसीज्ड वो लोग ले लेते हैं सक्सेशन. लेकिन अगर ये बच्ची है तो या टोटल सक्सेशन रेस्ट टू चिल्ड्रन, 2 पार्ट्स सन, 1 पार्ट डॉटर. ये रूल है शरिया का. राइट. तो ये सब बातें समझ में नहीं आती साहब जजों को भी, और ये फॉलो नहीं कर सक रहे हैं. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सबको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से राइट टू इक्वालिटी दिए हैं,
और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है 44 का, Right. यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मस्ट है। राइट। शिराज मैडम आप बंद करिए मैडम, आप बात करके आप विल क्लोज द शो। अगर बाद में सोनी मैडम कुछ बात करना है तो शील स्पीक, बीइंग ए क्लोज फ्रेंड ऑफ राइसा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड Right, right. बार-बार ये बता रहे थे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में वसीयत बिल नहीं रहेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जिसे भी प्रॉपर्टी शेयर पार्टीशन नहीं होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट मैं ये फोकस करके बताना चाह रही थी आपको कि हाँ 1/3 वो हिब्बा कर सकते थे वो 1/3 राइट शेयर राइट में। राइट। शिराज मैडम क्लोज करिए, अनम्यूट करके क्लोज करिए मैडम। वो हरा होना चाहिए। या डॉक्टर साहब या एक सेकंड, मैं शिराज मैडम से क्लोज करना चाह रहा हूँ। अगर आप बाय करना चाहते हो कर सकते हैं सोनी मैडम, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। और आप आइए नेक्स्ट टाइम भी बुलाएंगे आपको, वक्फ प्रॉपर्टी हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड के डिस्कशन पे, यू हैव टू जॉइन अस। या इंशाल्लाह ठीक है सर। लेट अस प्रे फॉर द सोल ऑफ आपके फ्रेंड राइसा फातिमा के। जी सर। लेट अस होप शी विल गेट जस्टिस, हर फैमिली विल गेट जस्टिस। या सर। थैंक यू। या शिराज good मैडम, या गुड नाइट। शिराज मैडम आप वो चालू करके बात करिए, ये अनम्यूट करिए मैडम। ये हरा होना चाहिए, ये हरा होना चाहिए, ये लाल है ना। हाँ बड़ी बात करिए। हाँ जी जी कर ली सर, या कर ली, आप बात करिए। हो गया ना। हेलो सर, मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी, जहां पर हम फोकस करे थे कि ब्रूटली मर्डर कैसे हुआ, कानून किस तरीके से दांव पे खेलता है, होने के बाद नहीं होने के बाद शेष कैसे दिए जाते हैं, ये जनरल टॉक से आई डोंट थिंक इसमें से हमको कुछ फुलफिल मिला है। कहना यही है कि भाई हमारे लॉज को मजबूती से करने के लिए जुडिशियरी सिस्टम या हमारे जजेस को बहुत ही संजीदा होकर ऐसे मामले में तेजी के साथ काम करना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन बोथ द साइड्स ऑफ द एडवोकेट क्या करते हैं उसके भी बहुत संजीदा सोचना चाहिए, शायद ऐसे मामले दोबारा ना हो। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि बार बार खलील साहब बीजेपी के एडवोकेट ये कह रहे थे कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, इक्वल प्रॉपर्टी का राइट से कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, पार्शियल या मानते हैं या फुल्ली नहीं मानते। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते एनी ऑफ द राइट में जहां पर इक्वली की बात होती है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है जैसे कि सिविल डिस्प्यूट्स में, तो बहुत सारे ऐसे रिलीजन से मजहब है, वहां पर बहुत सारे क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। इधर ये आज तो एक मर्डर हुआ है, उस जब तक बहुत सारे मर्डर्स होंगे, क्योंकि किसी को भी अपना राइट नहीं मिल सकता। दूसरी चीज आखिर में ये क्लोज करूंगी मैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ हमारे सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को तहस नहस करती है। आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 44 खुले तौर पे बोला, मैं अभी पढ़ रही थी आर्टिकल 44 क्या है। अगर इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो उस सर्कमस्टेंसेस को, कुछ कवानीन में की बातें सारे देश में, सारे मर्द और औरत में, सारे राइट्स में नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है ये चीज। और हम प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। और आखिरी बात, बीइंग ए मुस्लिम आपको मैं बोलूंगी, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का साथ देते हैं तो आप अल्लाह की शरीयत के मुखालिफ जा रहे हैं। यही कहना चाहूंगी भाई, बीइंग ए मुस्लिम आप अल्लाह की शरीयत के खिलाफ नहीं जाना है, जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री में शरीयत को पूरा इख्तियार है और वो स्पेस देनी चाहिए सारी जगह। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। ये ओके, आपके इनकलाब बरकरार रहो, लेकिन एज ए कंसर्न्ड इंडियन सिटीजन आई कैन ओनली से दैट शी हैज़ ऑलरेडी क्विट। वी आर ऑल सिटीजन्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल्स, नॉट इंडिविजुअल। जो भी पर्सनल लॉ बोर्ड से, वी विल रेस्पेक्ट दैट, एवरी रिलीजियस बॉडी हैज़ टू रेस्पेक्ट दैट। सिटीजन्स दे मे, बट for us as the law of the land we respect it, and for us the constitution of India, that has to prevail, and no one is above our constitution and no one is above the rule of law, the law of the land. Right sir, we'll take up the discussion later on, and I hope I am very clear to everyone. India runs by constitution, no one is above rule of law. This has to be borne in my mind, and no individual fancies or any group's dictums will run, because the constitution is supreme. Indians, these honorable citizens, we have submitted this constitution to ourselves. So be aware, watch out constitution, what it speaks, and you have to adhere to the constitution.
That is where we say India is rich, because we find unity in diversity in every sphere, and let us hope that continues so that everyone leads a happy and comfortable life. Again, we pray for the soul of the slain advocate, and we only hope justice prevails. Justice delayed is also justice denied. At least courts will also take cognizance. How can a court officer be so brutally killed? Let us stop the issue here, and we will continue further on these issues. Thank you खलील साहब और जो भी लोग शामिल हुए, all my guests, thankful to you. All to all Indians in India, Sukha Nidra Shubha Ratri. To the world over, good morning, good afternoon, good evening and good night. Bye.